let's begin with the Money Mastering Program. Thank you for joining in. Let's begin. Really thank you to all the people who made this program possible, all the participants, all the old participants, all the new participants, Annie, Arvind ji, Rajan ji, all the Shukrana Foundation जो हमारे foundation के volunteers हैं, all the people who have been with us since years right now, and आपकी participation, आपका एक जुड़ाव है इस काम के साथ, इस magical काम के साथ. Thank you for being here. Because of you only, this work is not only it's surviving, it's still going on, but still expanding. It's expanding on a viral stage right now. So all because of your love and your being with this work. So thank you very much to all the magic book practitioners, all the volunteers. Thank you very much for your love and your commitment towards this work. So thank you very much for being here. I know मतलब काफी लोग हमसे, कितने लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ? How many of you are being with, मतलब पहली बार मुझे देख रहे हैं? Simple भाषा. First time, ma'am. First time, ma'am. Maybe first time. First time, ma'am. First time. First time, ma'am. कहाँ से? From where are you? Like which part of India or which part of Bombay, South Bombay. Delhi, ma'am, Delhi. कोई साउथ मुंबई दिल्ली से जुड़ रहे हैं? मैं फ्रैंकफर्ट से मैम, फ्रैंकफर्ट जर्मनी. Frankfurt, Canada now. Bombay. I am Yes, ma'am. Bangalore, Mumbai. Wow. से जुड़ रहे I हैं. am at गंगानगर, राजस्थान से जुड़े हैं. Okay. From Aurangabad city. Okay. Ma'am, I am from Jaipur. जयपुर से जुड़े हैं, औरंगाबाद से जुड़े हैं, I am फ्रैंकफर्ट, Bombay, but yet now Canada, madam. कनाडा. Okay, we are I'm from Noida. I'm from Delhi. Atlanta, USA, Kolkata, Bangalore. So thank you very much. पुणे से जुड़ रहे हैं. I'm from Bhubaneswar. तो भुवनेश्वर से, so जहां से भी आप हैं, अगर आप ह्यूमन हैं, ह्यूमन लोग जैसे दिखते हैं, so wherever from any part of this planet you are, if you are a human, this 15 days program will work for you. आपके एज ग्रुप, अच्छा एज ग्रुप में सबसे छोटी एज वाले कौन से लोग हैं हमारे साथ? 20 से नीचे वाले कोई जुड़े हो हमसे इस समय? 19, वेलकम. 19 और 19 से छोटा कोई हो? उससे छोटा कोई एज में? So like you can be as young as 9, 10, 11, 12. If you can understand this language, yes, this program will work for you. 18, Siddhi is 18 right now. So thank you very much all the young people for joining in, and all the very young people, like the highest age. कितना बड़ा है? सबसे बड़े वाली एज कितनी है हमारे साथ इस समय? Maybe 70 plus, anyone? 70 plus? If anyone is 70 plus, just write down your age. कि हाँ, if you don't 75. Welcome to the program. 75. Anyone above 75? Anyone above 75? So you can go up to 80, 85, whatever you like, because ये जो age होता है, मतलब उसमें कोई भी criteria नहीं है. If you understand, because पैसा जिस age में मिले अच्छा है. So यहाँ पर थोड़ा सा light का, let me check what's the concern. There is some concern with the light. Let me work it out. Okay, because काफी दिनों से जो मैं classes ले रही थी, that was in open. Open means आराम से open में ले रही थी. So right now, because काफी दिनों बाद इस वाले station पे काम करना मैंने वापस शुरू किया है. So this is something to just take care of. So yes, 75 से ऊपर कोई नहीं है यानी इस समय. I think 75 से ऊपर कोई नहीं है. Anyone above 75? नहीं है. 75 से ऊपर वालों को पैसे नहीं चाहिए. I hope even that part of the age needs a lot of money stability. So if you know some people who are above 75, and if you can invite them, because this particular program suits everyone, whether you are 10-year-old or you are 90-year-old. You can use the formulas, the points, the science we'll be talking about in this program to use in your life and bring abundance. Okay? Can you see me? Someone is saying you can't see me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can see me. चलो एक बंदा मेरा बोल रहा है ना, मतलब क्या कहते हैं, जो मेरे को instantly बता दे मेरी आवाज आ रही है, नेटवर्क आ रहा है,
और मैं दिख रही हूँ, पुराने बंदों में से कोई भी मतलब कोई भी प्लीज बी माई सपोर्ट, ठीक है। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. As we know, we are from different parts of world, so language will be using. I think हिंदी किसको समझ नहीं आती है? आप में से किसको हिंदी समझ नहीं आती है? Anything like that? Say हिंदी, वो लिखे पहले हिंदी समझ नहीं आती है. वो लिखे चैट बॉक्स में कि हिंदी समझ नहीं आती है. Anyone like that? जिनको हिंदी समझ नहीं आती है, ओके, जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती है, ऐसा कोई? बिकॉज वी विल बी यूजिंग अ बायलैंग्वेज, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों यूज करेंगे, बट मुझे पता रहना चाहिए कि हिंदी सबको समझ आ रही है, बिकॉज आई विल बी यूजिंग मिक्स लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश. वैसे तो मेरा मन था पूरी शुद्ध हिंदी में लीड करने, शुद्ध हिंदी में इस सेशन को, इस प्रोग्राम को पूरा लेने का, परंतु फिर भी क्योंकि हमारे बीच में काफी लोग दूसरी सिटीज से भी जुड़ रहे हैं, तो दैट्स वे हमारे को ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो सबको समझ आ जाए. हाउ टू रीड, किसको नहीं, हाईफाई हिंदी, हिंदी हाईफाई नहीं, ठीक है. तो हिंदी में भी हम कुछ कुछ रीड करेंगे, पर मेजरली आई विल ट्राई, बिकॉज अदरवाइज जो बुक हमने बनाई है उसको हमने हिंदी में बनाया था. But when we were going through the registration list, we could see so many people are from South India and different parts of India and a little from outside as well. तो हमने फिर आज का सेशन जो है, यार मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं तो क्लियर है. Yeah, it is clear. It is clear. It's clear. Voice is clear. Voice is clear. Loud and clear. हाँ, तो भाई चैट के अंदर देखिए, एक बीच समझिएगा, आपकी चैट को अगर मैं डिसेबल कर दूंगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और अगर इस समय जो चैट नॉन स्टॉप टक 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 आ रही है, दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग, दिस इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग. सो प्लीज स्टॉप नाउ, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी आर टॉकिंग. Okay, instead of this, stop everyone, stop chat, stop, relax. Whenever we'll have some question, we will ask. और अगर मेरे को सपोज सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, या आपको मेरी फोटो नहीं दिख रही है, तो प्लीज अपना नेटवर्क एक बार चेक करें, ठीक है. बिकॉज अगर एक को भी दिख रहा है या एक को भी आवाज आ रही है, दैट मीन्स आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है. माई नेटवर्क इज क्लियर, बट हाँ, सबको ही नहीं आ रही मेरी आवाज, तो लेट मी नो, ठीक है जी. सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. एंड टुडेज सेशन, कितने लोग एक्साइटेड हैं, रियली एक्साइटेड, मतलब मनी मनी मनी, कितने लोगों को सच में रियली यू वांट टू नो अबाउट? excited. Too much. Super excited. बहुत ज्यादा. Super excited. So much excited. Super excited. Super duper excited, ma'am. मनी. तो मनी क्या होता है, कैसे इसको हम अपनी लाइफ के लिए बहुत ईज आउट कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं समझा ना, वो कभी इसको समझ ही नहीं पाए, और जिसने एक बार समझ लिया ना, उसके लिए इट बिकम्स अ केक वॉक. केक वॉक समझते हो, मतलब मक्खन की तरह हो जाता है, प्रोवाइडेड आप इसको समझ लो कि ये खेलने कैसे है. खेलने मतलब ये गेम की तरह समझेंगे हम आने वाले दिनों में, बहुत इजी तरीके से समझेंगे. जैसे बच्चा होता है ना, एक खेल को नए सिरे से खेलना सीखता है. तो my request to you is, because we will be starting today, my request to you is with holding hands, please for this 15 days consider का मतलब होता है प्लीज एक बार कोशिश करें, कंसिडर करें इसको, इसके ऊपर विश्लेषण में थोड़ा सा. कंसिडर का मतलब होता है अच्छा मैं सोचता हूँ इस बारे में, ठीक है. तो कंसिडर कि जो हम बातचीत करने वाले हैं, हो सकता है उसमें से कुछ आपने पहले कभी ना सुनी हो, या आपको उसमें लॉजिक्स ना समझ आए, कुछ लॉजिक्स ना समझ आए, परंतु 15 दिन का बहुत छोटा प्रोग्राम है. तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, ट्राई इट ऑन. ट्राई इट ऑन का मतलब होता है जो हम कह रहे हैं करने को, प्लीज आप उसको करिए, जैसा कहा जा रहा है बिल्कुल वैसा ही करिए इस 15 दिनों में. एंड आफ्टर 15 डेज इफ यू थिंक यू वांट टू कैरी इट ऑन, जो भी हम आपको कहेंगे करने के लिए, कैरी इट. अगर आपको लगे नहीं मुझे इसमें बिलीव नहीं हो पा रहा या मैं नहीं करने में इंटरेस्टेड, तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है. पर क्या ऑल ऑफ यू, मतलब कैन यू रियली एग्री कि फॉर दिस 15 days यू विल बी डिलीजेंटली, वेरी कमिटेडली डू व्हाट दिस प्रोग्राम विल टेल यू टू डू? से यस. अगर इफ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, फायदा ma'am. है, क्या Yes, दिक्कत है? ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, my request Yes, ma'am. is for 15 Yes, days ma'am. with us, do it, ठीक है. ये कुछ रूल्स हैं जो स्टार्टिंग में बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं. तो और अगर हम आगे बढ़े, आश्विन मैम आप अनम्यूट हो गए हैं.
प्लीज म्यूट ऑन मत कीजिएगा मैम, वो आप म्यूट किया okay, so take care all the host and co-host around. So हाँ, अच्छा वो सबको म्यूट अनम्यूट कर रहे होंगे ना, so इसलिए अच्छा ठीक है. So let me know, मुझे बोल दिया करें, मुझे अपने आप को अनम्यूट करना है फिर से. Okay, so number 1 rule, you will consider and practice everything that we will be sharing in this program. जो भी आपको करने को बोलेंगे, अगर दिन में इतनी बार ये होमवर्क करना है तो आप करेंगे, सुबह उठते ही ये करना है तो आप करेंगे, रात को सोने से पहले ये करना है तो आप करेंगे. जब गीता पे शपथ रख, कहते ना हाथ रख के शपथ खाते हैं तो आप सब बोलो मैं शपथ खाता हूँ. शपथ आपके पास अपनी नोटबुक होगी, उस पे हाथ रखो और बोलो मैं शपथ खाता हूँ कि 15 दिन तक जो इस प्रोग्राम में कहा जाएगा मैं उसको बिल्कुल बिल्कुल सरेंडर होके करूंगा या करूंगी. ओके, एंड से इट टू योरसेल्फ, से इट टू योरसेल्फ सो दैट यू एग्री टू इट. बिकॉज आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है कुछ कुछ बातों में आपका दिमाग या आपके बिलीव्स या आपकी पुरानी सोच अड़ंगे डाले, या आपको बोले क्यों करना है, कैसे करना है, ऐसे नहीं हो, ऐसा ना हो, जो भी उसका तरीका होगा काम करने का, आपके बिलीव्स को वी विल सी टू इट कैसे उनको डिसॉल्व करना है, बट यू बी विद अस. ठीक है, तो ये हमारा नंबर 1 शर्त है. नंबर 2 शर्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स भी बने, इन ग्रुप्स के अंदर हम हो सकते हैं सब ग्रुप्स बनाएं ताकि आप लोग आपस में शेयरिंग जरूरत पड़े तो, परंतु इन ग्रुप्स को सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ इस प्रोग्राम से रिलेटेड बातों के लिए यूज करेंगे. हो सकता है कोई प्रश्न हो तो हम आपको लिंक दे देंगे, इसमें अपना प्रश्न लिखिए ताकि हम उसको आंसर कर पाए, या हो सकता है हम कुछ आपसे बातचीत पूछें या आपके होमवर्क्स वगैरह चेक करने के लिए उसमें डलवाएं, परंतु उसके अलावा कोई भी फॉरवर्डेड कन्वर्सेशन या वो कन्वर्सेशन जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है आप नहीं करेंगे. ये थोड़े रूल्स शुरू से सेट होने चाहिए. से ओके, मतलब अपने अपने लिख लो, हाँ मैं नहीं करूंगा. आप यहाँ पर जो सीखने आए हैं बस उसी से रिलेटेड आप बातचीत करेंगे, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन या आंसर्स करेंगे. इवन इस प्रोग्राम के एंड में भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जो आज हमने सीखा, आज मैंने जो सीखा, आज का जो चैप्टर रहा या कल का चैप्टर रहा या परसों का चैप्टर रहा, जो चैप्टर में सिखाया गया है मैं सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा. आज जैसे हमने अभी बात करी ही नहीं कि कर्जों से मुक्ति कैसे पाए, और आप एंड में पूछ रहे हो मेरे पे 2 लाख रुपए का कर्जा है, 2 करोड़ रुपए का कर्जा है, मैडम मैं कैसे छूटूं, मैं कैसे उसको अपने ऊपर से, तो ये बहुत इररेलेवेंट क्वेश्चन होगा. ठीक है, आपको पहले आपने फोकस करना है इस 15 दिन के प्रोग्राम पे, क्योंकि आपके हर एक प्रश्न का जवाब इसी प्रोग्राम के अंदर है. आपको अपना प्रश्न पता होना चाहिए, उसका जवाब भी ढूंढना आपको आना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे आंसर्स आपको खुद मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड यू कीप पेशेंस एंड बी विद द प्रोग्राम. ओके, सो और इस प्रोग्राम में हम मोर और लेस सिर्फ पैसे के बारे में बात करेंगे. ऑल्दो जो हम टेक्निक सीखने वाले हैं ये आपकी जिंदगी की बाकी आयामों में भी बहुत काम आती हैं, चाहे आपका करियर होगा, चाहे आपकी हेल्थ है, रिलेशनशिप्स हैं, आपका वेलबींग है, सब जगह काम आती हैं. बट राइट नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन मनी. ओनली ऑन मनी. अब आप पूछेंगे क्यों, व्हाई मनी? देखिए, एक चीज मैंने जिंदगी में नोट करी है, बहुत इजीली नोट करी है. अगर आपके पास पैसा है ना, और इनफ पैसा का मतलब है जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. हाँ, जितनी जरूरत है वो तो उतना तो होना ही होना है, उससे थोड़ा हल्का सा ज्यादा, नॉट लाइक वेरी ज्यादा, बट जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, उसके अराउंड अगर पैसा है तो आपकी सब कुछ, मैं कह रही कुछ कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और आपके पास अपनी जिंदगी को स्वाद से जीने के लिए काफी मुमकिन मुकाम बनने शुरू हो जाते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते बाकी जगहों के ऊपर भी आप इजिली कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो. जैसे कि अगर सपोज मैं बोलूं आपको स्पिरिचुअलिटी की दुनिया, हाँ, या मैं आपको बोलूंगी कि सेल्फ अवेयरनेस की दुनिया, बहुत ही बेवकूफाना बात होती है अगर मैं किसी को बोलूं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ या सेल्फ अवेयरनेस की तरफ या सेल्फ अवेकनिंग की तरफ अपना ध्यान देना शुरू करो. आप नहीं दे पाओगे जब तक कि आपकी जो मन की जरूरतें थी या इच्छाएं थी, जो कि सच में थी आपकी, या आपकी भौतिक जरूरतें थी, वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है. आपने दुनिया में कितने लोगों को देखा होगा जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं परंतु आगे जाके अटक जाते हैं किसी न किसी भौतिक जरूरत के अंदर. कभी देखा है आपने ऐसा कि हाँ वो अटक जाते हैं आगे जाकर? क्यों? क्योंकि वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि आपको अपनी मटेरियलिस्टिक जरूरतों को पूरा करना और उनको पूरा करते हुए जो आपकी एक प्रैक्टिस होती है उसको पूरा करना, ये बहुत जरूरी है. अब पैसा एक ऐसी चीज होती है, मनी, फाइनेंस, रुपया एक ऐसी चीज होती है
अगर आपने इसको कमाना सीख लिया, इसको ना सिर्फ कमाना, इसको होल्ड करना, इसको ग्रो करना सीख लिया, आप जिंदगी में हर क्षेत्र में, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहोगे, चाहे आप बाद में किसी भी इमोशनल दुनिया में, सेंटिमेंटल दुनिया में, बहुत सारी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, हर जगह पे इस पैसे के साथ जो आपका अच्छा रिलेशनशिप है वो हर जगह आपकी प्रैक्टिस में काम आएगा। परंतु इस क्षेत्र में अगर आपका दिवालियापन है, बैंक्रप्सी है, स्कैर्सिटी है, जो भी है, नेगेटिविटी है, जो भी क्षेत्र में नेगेटिविटी है, उस वजह से और बाकी क्षेत्रों में भी आप बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप घुस नहीं पाओगे, पर आगे तक नहीं बढ़ पाओगे। सिंपल एग्जांपल समझिएगा, घर में कोई इंसान है, सपोज आपके मोहल्ले में कोई इंसान है, बहुत अच्छी नेचर का इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है, मतलब अच्छा नेचर इंसान है और व्यक्तित्व भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर पैसा उसकी जेब बिल्कुल खाली है, ठन ठन गोपाल। पैसे के लिए हर समय एक दूसरे से मोहताज रहना, या कोई उसकी मदद कर दे या उसको कुछ हेल्प कर दे, क्योंकि वह पैसा नहीं है। तो ऐसे इंसान, चाहे उसकी नेचर अच्छी है, व्यक्तित्व अच्छा है, आपको क्या लगता है कितना टाइम तक लोग उसको रिस्पेक्ट कर पाएंगे? सब कुछ अच्छा है उसका, पर घर में खाने को नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है, घर नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। तो कितना टाइम तक आपको लगता है कि लोग उनको रिस्पेक्ट कर पाएंगे? मतलब लॉन्ग टाइम तक तो नहीं कर पाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे? और अगर उनका व्यक्तित्व अच्छा है, नेचर अच्छी है, बातचीत अच्छी है और उनके पास अपने जरूरत के लिए पैसा भी इनफ है, चाहे वो बड़ी उम्र के हैं चाहे छोटी उम्र के हैं, और उनके पास पैसा भी है, तो कंपैरेटिवली ही इज लिविंग अ बेटर लाइफ, इज इट सो? ओके, तो पैसा अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद कि पैसा अच्छा है, पर कितना अच्छा है ये हम आगे चलते चलते बात करेंगे, ठीक है? तो लेट्स बिगिन विद मनी। अच्छा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आज पहली बार मिल रहे हैं, माय नेम इज आश्विन मुंजाल and I'm a cosmetologist by profession, working in the field of making people look beautiful from last 26 years. And my work vary from, बहुत लंबा चौड़ा काम है हमारा, दिल्ली में, दिल्ली NCR and पंजाब सेक्टर के अंदर we are into beautifying people, and right now we're into education. लोगों को सिखाते हैं हम, into makeup industry, hair industry, skin industry, nail industry, and from last 4 years, like a little shift into my passion, little shift, like क्या shift हुआ है? पहले मैं सिर्फ cosmetologist थी, from last 9 years I am practicing ontology as well. Ontology होती है, cosmetology होती है science of making people look beautiful एक्सटर्नली, बाहर से सुंदर बनाना, मेकअप से, फेशियल से, कलरिंग से, है ना, ये सब कॉस्मेटोलॉजी का पार्ट है। ऑन्टोलॉजी होता है किसी इंसान के भीतर, बीइंग में काम करना, भीतर से। तो अर्लियर आई वाज इनटू द प्रोफेशन ऑफ मेकिंग पीपल लुक ब्यूटीफुल एक्सटर्नली, नाउ आई एम इनटू अ पैशन ऑफ मेकिंग पीपल फील ब्यूटीफुल इंटरनली। तो अंदर से जब सुंदर होते हैं ना, तो बाहर से अपने आप सुंदर हो जाते हैं, ठीक है? एंड I'm married to love of my life, Arvind, from last 26 years, and he is having his own business into gift item wholesale in Sadar Bazaar, and he's having his own showrooms and very big business there in Old Delhi. And then I have my 2 kids, मेरे 2 बच्चे हैं, and दोनों graduate हैं इस समय, and दोनों ने अपना अपना बिजनेस संभाला हुआ है और बहुत अच्छा दोनों अर्न कर रहे हैं अपने अपने बिजनेस में। एंड माय डॉटर एनी, शी इज डूइंग हर ओन बिजनेस, माय सन मेहर, ही इज डूइंग हिज ओन बिजनेस, एंड आई लिव इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, अशोक विहार में मैं रहती हूँ। एंड और जो जानना पूछ लेना, ठीक है? एंड बहुत ही बढ़िया जिंदगी बीती पिछले 25-26 साल में, मतलब, और इस 26 साल में जो हमने सीखा कि आप लाइफ के लिए जो भी चाहते हो वो पॉसिबल है, जो भी चाहते हो, whatever you really want for your life is possible, but how? उसके लिए आपको एक साइंस समझनी पड़ेगी, एक विज्ञान है। ये कोई अंधविश्वास या कोई टोटका या कोई ऐसी वाली बातें नहीं है, इसके प्रॉपर साइंस है। पहले आप समझो, और उसके बाद अगर आपको साइंस समझना है तो पूछना मुझसे कि मैडम ये साइंस क्या है, न्यूटन क्या समझा रहा है, आइंस्टाइन क्या समझा रहा है। ये अगर सपोजिंगली लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको समझ आती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने डिस्कवर की थी भाई, बताओ? लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने डिस्कवर की थी? पता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, कि कोई भी चीज गिरेगी तो नीचे जाएगी, ये किसने डिस्कवर की थी?
न्यूटन ने, ठीक है। तो कुछ कुछ लॉज हम न्यूटन के यूज करेंगे आगे बढ़ते हुए, कुछ कुछ लॉज हम आइंस्टाइन के भी यूज करेंगे, कुछ कुछ हमारे हमारे वेदों के होंगे। वेद पता है सब लोगों को, हमारे हमारे भारत में सनातन वेद है कुछ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड वेद? ऋग्वेद पता होगा ना, 4 वेद हैं हमारे, है ना। तो 4 वेद हैं, जिसने एक वेद पढ़ा वो वेदी, 2 वेद पढ़ने वाला द्विवेदी, 3 वेद पढ़ने जिसने पढ़ के समझ लिया वो त्रिवेदी, जिसने 4 वेद समझ लिया चतुर्वेदी। तो मैं चारों में से कुछ नहीं हूँ, तो ठीक है। पर मैंने जो जो अच्छे पॉइंट्स थे वो मैंने निकाल रखे हैं, मतलब कि और जो जो यूज कर रहे हैं हम लोग सदियों से, हमारे पूर्वज हमें बताते रहे हैं और हम यूज करते रहे हैं, तो वो भी आपको आई विल लेट यू नो विद द टाइम। तो चाहे गीता, अब हमारे भागवत गीता में लिखा है, कुछ कुरान में लिखा है, कुछ शास्त्रों में लिखा है, कुछ गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, कुछ बाइबल में लिखा है। तो हर जगह पे कुछ 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 ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे को बहुत काम आएंगी इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर। ओके, और आप किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी धर्म के हो, कहीं से भी आयो, देखो पैसा सबके लिए बराबर है ना। पैसे का कोई धर्म नहीं होता, पैसा सबको चाहिए और पैसा सबको इक्वली ट्रीट करता है। क्यों इक्वली ट्रीट करता है, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, वो नहीं देखता कि वो किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। जिसने उसके लिए सही फॉर्मूला फिट किया है उसके पास चला जाएगा, जिसने उसको सही तरह से होल्ड करना सीखा है वहां रुक जाएगा। ओके, तो हम आराम से सीखेंगे इस बारे में आगे बढ़ते बढ़ते कि पैसा एक ऐसी एनर्जी है जिसको इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, जिसमें हमने मल्टीपल टैबलेट मतलब जो शिलालेख होते हैं, शिलालेखों का हमने इसके अंदर हेल्प लिया है, और बुक्स का, स्क्रिप्चर्स का, बड़े बड़े वेदों का, कुछ महान लोगों की कई बातों का। तो जैसे कृष्णा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं इस बारे में अगर आप समझे तो, परंतु वो समझने के लिए हमने इजीफाई किया है और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको बहुत सिंपल भाषा में लाकर समझाया है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अब आज का प्रोग्राम। लेट्स बिगिन। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ जब पहले प्रोग्राम किया, तो आपको चलो मनी के क्षेत्र में कुछ आपने डिफरेंस कॉज किया है, कुछ मैजिक कॉज किया है। एनीवन जिन्होंने पहले कोई प्रोग्राम किया है मेरे साथ, चाहे वो पैसों के रिलेटेड हो या किसी भी रिलेटेड हो, मैंने भी मैजिक पावर जो भी किया है, पर आपको मनी के क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसा मिला जो कि बहुत मजेदार था। ठीक है, जिन्होंने पहले प्रोग्राम किया है, ऑब्वियसली खुद से पूछ सकती हूँ ना। मतलब जिन्होंने पहले किया, सो दैट पीपल हु आर न्यू, तो दे शुड नो इसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिजल्ट देगा। मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है, ठीक है। और गाइड क्यों करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कि क्यों करना है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक ऐसे पॉइंट से करी थी जहां मेरे पास कुछ भी नहीं था, खास कुछ नहीं था। मतलब कि जब मैंने अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू मे बी हैविंग फोन राइट नाउ, तो जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, यू कैन गो ऑन गूगल, बिकॉज इस वाले कनेक्शन को बने रहने देना। इफ यू हैव अ सेपरेट इंस्ट्रूमेंट, यू कैन गो ऑन गूगल एंड यू कैन टाइप आश्विन मुंजाल, AASHMEEN, ठीक है, एंड देन लेट मी नो। अच्छा, फोटो में जाना, कहीं वो हिस्ट्री में ना जाना शुरू कर देना, कब शुरू किया, क्या शुरू किया। वो फोटो होते हैं ना, इमेजेस गैलरी होती है, जिनके पास फोन्स हैं, सो दैट अ लिटिल बैकग्राउंड इज सेटअप। ओके, जिनके पास अलग इंस्ट्रूमेंट है, यू कैन गो इनटू द गूगल, वहां पे टाइप करिएगा AASHMEEN आश्विन मुंजाल, एंड गो टू द इमेज गैलरी। क्या दिखा? मेरी प्रोफेशनल बैकग्राउंड दिखा होगा। क्या दिखा? एनीवन कैन स्पीक इट अप। मतलब क्या दिखा? कुछ दिख रहा है अगर इमेज गैलरी में जाकर? अच्छा ही देखना कुछ। सो बिकॉज अपने बारे में क्या बताऊं ना, पर ये पता होना चाहिए कहाँ जीरो से स्टार्ट किया। एक टाइम ऐसा था कि जब when my daughter's first birthday was there and I wanted to buy a dress for her and I went to the market, मॉडल टाउन है हमारे घर के पास। तो जब मैं वहां गई तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपनी पसंद की ड्रेस खरीद पाऊं, and I had to compromise with the lower, मतलब जो अंदर होता है ना, डब्बों में से ड्रेस निकाल के दिखाते हैं, जो गत्ते के डब्बे में से, तो उस तरह की ड्रेस के साथ मतलब I had her first birthday, but that was the moment when I really realized कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं जीना। मेरे को पैसे इतने होने चाहिए कि मैं अपना मन न मारूं, अपने मन की बात पूरी कर पाऊं, अपने बच्चों को, अपने परिवार के साथ एक अच्छी लाइफ जी पाऊं। तो हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा था, परंतु जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि सबको बराबर मिलेगा। तो अच्छा था बिजनेस ओल्ड दिल्ली का, बट घर में मतलब मम्मी पापा के होल्ड में था सब कुछ। होता है ना कई बार जॉइंट फैमिलीज में ऐसा होता है, आपके साथ होता है कभी? देखा है ऐसे? होता है पंजाबी फैमिलीज में तो पता नहीं मुझको।
तो जहाँ पे मम्मी पापा बड़े लोग होते हैं ना घर में, तो फिर उनका होल्ड होता है, तो फिर ऐसे में फिर आपको उतना ही मिलेगा जितना वो दे रहे हैं। पर आपके अगर शौक थोड़े ज्यादा अच्छे हो तो फिर आपको कमी पड़ सकती है। बट नहीं, मेरे को वो मंजूर नहीं था कि कमी कर करके अपना दिल मार मार के जीना। तो आई ऑलवेज वांटेड कि नहीं, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम सब लोग अपने वो, मतलब फॉरेन ट्रिप पे जाना है तो जाना है यार, क्यों दिल क्यों मारना। इतनी मुश्किल से हमें मनुष्य शरीर मिला है, मानव जीवन मिला है, तो मन मारने के लिए थोड़ा ना मिला है ना। जो दिल को अच्छा लगता है जरूर करना चाहिए। तो उसके लिए अगर पैसा जरूरी है, पैसा इज अ मीडियम, तो आई शुड हैव इनफ मनी टू फुलफिल माय ड्रीम्स, डिजायर्स। तो वो एक मोमेंट था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दैट जर्नी एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अ फ्यू थिंग्स एंड प्रैक्टिसिंग इट इन माय लाइफ, एंड कई बार तुक्के से, कई बार बिना तुक्के के, पर आगे चलते 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 लाइफ में बहुत कमाया, बहुत कमाया। मतलब बहुत, जहां जाना चाहते थे दुनिया में, फॉरेन हॉलीडेज, बेस्ट ऑफ रिजॉर्ट, 7 स्टार प्रॉपर्टीज, बेस्ट ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, ड्रेसेस, ज्वेलरी, लग्जरी कार्स, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अराउंड, मतलब प्रॉपर्टीज खरीदना और पार्टीज करना, यॉट पार्टीज, पूल पार्टीज, जो जैसा भी लाइफस्टाइल पसंद था वो सब एंजॉय किया लाइफ में, सब कुछ मिला। व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर साइंस बीइंग फॉलोड। तब मेरे को पता नहीं था, टू बी वेरी ट्रू, 10 साल पहले तो मुझे इस साइंस के रिटन स्क्रिप्चर्स नहीं थे मेरे पास, तो कभी किसी ने सुन लिया, किसी ने कह दिया, फॉलो कर लिया। परंतु अभी कुछ सालों से आई हैव द रिटन डॉक्यूमेंट्स, सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस प्रॉपर सेशंस। तो इसीलिए मुझे बहुत कुछ मिला है। इसलिए कई बार लगता है कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है, तो अगर सपोजिंगली इफ आई कैन बी ऑफ सम यूज, of some contribution to other human beings, it will be a privilege. It will be really privilege अगर मैं आपके साथ कुछ भी ऐसा शेयर कर पाऊं जिससे आपकी जिंदगी में, स्पेशली पैसों की दुनिया में, रोशनी आ जाए। सेकेंडली, जिस देश में हम रहते हैं, भारत देश, तो मैं जो भी कमाया है, जो भी पाया, इस देश से ही पाया है। एंड बहुत मन से इच्छा है। कभी हम बाहर जाते हैं ना, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, स्पेशली यूरोप की साइड पे, तो लोगों को लगता है इंडियन ना एमी है। कहीं आपको भी लगता है एमी, मतलब हम एमी है कोई। तो मतलब वो जो एमी वाली फीलिंग आती थी ना, मतलब तो घूमते थे हम लोग फॉरेन कंट्रीज में, तो लोग कई बार ऐसे हमारे बारे में, इंडियंस के बारे में उनके विचार कुछ ऐसे हैं। तो ये देख के ना मन को लगता था कि नहीं, हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बेस्ट हैं। और ये फील आता था कि नहीं यार, अपने इंडियंस की इमेज हम इतना होना चाहिए कि हम दुनिया में द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, we are the best economy in the world and we are very very smart people, जो भी मन में इच्छा आती थी। तो अभी आज जब ये जूम ऑनलाइन शुरू हो गया है, एक मीडियम, आपके पास एक रेडी पूरा मैनुअल है, आई रियली वांट दिस वर्क टू रीच ईच एंड एवरी इंडियन, कि आप भी अपने ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, मैं कल परसों में बहुत सुना, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, मेरा मन है हर घर मिल लेना, हर घर मिल लेना। तो मतलब पूरी दुनिया के हम मनी मैग्नेट बन जाए, मतलब पूरी दुनिया का पैसा खींचना हमें आ जाए अपनी तरफ। और ये नहीं कि कहीं पे हमने स्कैरसिटी करनी है, इस यूनिवर्स में बहुत अबंडेंस है, पर आपके घर आपकी जरूरत से कई गुना ज्यादा पैसे से भरे, आपकी जरूरतें सब अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए। सो फॉर दैट रीजन मेरा हुआ है, टू बी वेरी ट्रू, मेरे को मिला है। इसीलिए मैं दिल से चाहती हूँ आप सबकी इच्छाएं पूरी हो, जरूरतें पूरी हो, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम इज मेंट फॉर ऑल द इंडियंस। मतलब दिल से कहते ना, ये मेरा, दिस इज द बेस्ट, मेरे को बहुत गिफ्ट मिले हैं, दिस इज द ओनली गिफ्ट आई कैन गिव बैक टू माई कंट्री, टू मेक माई सिटीजन्स रियली रिच इन एटलीस्ट मनी एरिया। ओके जी, तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ओके, सो this is where we are to begin with. So we begin with a very, very, very important thing which is called money mastering. Okay? Money mastering क्या होता है? आप किसी भी चीज के मास्टर बन सकते हैं। मास्टर कहते हैं जब आप किसी चीज में सिद्धि प्राप्त कर लो, सिद्धि प्राप्त कर लो तो आप उस चीज के मास्टर हो जाते हो। पर सिद्धि प्राप्त करना एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत ही इसमें तपस्या लगती है, जब तप तपस्या, समझे, संयम, सब कुछ लगेगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। सेकेंडली, मास्टरिंग का एक पहला स्टेप समझ लीजिएगा, मास्टरिंग इज अ 6 स्टेप प्रोसेस। कभी हम मास्टरिंग सिखाएंगे आपको तो बताएंगे, उसमें 6 स्टेप प्रोसेस होती है मास्टरिंग। किसी भी चीज की मास्टरी कर सकते हो आप कुकिंग की मास्टरी कर सकते हो, आप ड्राइविंग की मास्टरी कर सकते हो, आप कारपेंट्री की मास्टरी कर सकते हो, आप मेकअप की मास्टरी कर सकते हो, है ना। परंतु इस समय जिस चीज की हम मास्टरिंग कर रहे हैं वो है मनी। और मनी मास्टरिंग का पहला स्टेप होता है, या किसी भी चीज की मास्टरिंग का पहला स्टेप होता है, जब भी आप वो, जैसे मैं अगर सपोज मेकअप की मास्टरिंग कर रही हूँ,
मेकअप में मास्टरिंग कर रही हूँ क्योंकि यही मेरा फील्ड था अब पिछले 26 साल से। जे पहला स्टेप होगा whenever I am not what I say to be a master in the makeup field and I know I am not right now, यानी कि जो हम आपको 15 दिन में सिखाएंगे आगे, जब भी आपको लगेगा कि आप ये काम जो आपने कोर्स में सीखा वो आप नहीं कर रहे हो उस समय, तो ये सिर्फ वो इंसान पकड़ पाएगा कि वो नहीं कर रहा जो मास्टरिंग की स्टेप पे पहली सीढ़ी पे आ चुका है। समझ गए आप लोग कि मैंने जैसे आपको जैसे कि बच्चों को बोला, मैं बच्चों को मास्टर बनाना चाहती हूँ सच बोलने का। अब मैंने बच्चों को बोला सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अब बच्चे ने झूठ बोला, परंतु झूठ बोलते उसको पता चल गया ओ मैंने झूठ बोला पर मुझे तो सच बोलना था। तो ये बात कौन पकड़ पाएगा? जो उस काम की मास्टरिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप पे खड़ा हो चुका है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको अगर मनी की मास्टरिंग करनी है यानी अमीर बनना है तो आपको ये हर पल रियलाइज होना चाहिए कि अगर मैं मनी की मास्टरिंग कर रहा हूं तो इस मोमेंट पे मैं क्या वो कर रहा हूं जो इस कोर्स पे बताया गया है। सो ये मास्टरिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। मास्टरिंग तो भी बहुत दूर है पर आप फर्स्ट स्टेप पे तो खड़े हो जाए ना, ताकि आपको हर पल ये ज्ञान रहे, सचेतता रहे, कॉन्शियसनेस रहे, अवेयरनेस रहे इस चीज की। बिल्कुल आपको कहते हैं ना, आपको इस चीज के लिए प्रज्ञा आपकी जग जाए कि इस समय आप जो कर रहे हो वो इस कोर्स के बताए अनुसार है या नहीं है। ओके, सो ये मास्टरिंग का। अगर कोई भी प्रश्न है लिख ले, हम एंड में लेंगे, पर इजी रखेंगे इसको, ठीक है। अब नंबर 2 स्टेप्स। नंबर 2 स्टेप में एनी आई वांटेड सिंगल पेज, हाउ टू मेक इट। नंबर 2 में क्या करना है आपको, एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट द पेज। ये डबल आ रहे हैं, मुझे सिंगल चाहिए। ओके, सो कैन यू सी द पेज? Yes, Can you ma'am. see the page single? Yes, ma'am. पैसे की कई स्टेजेस होती हैं। अभी हम लेवल 1 पे हैं। ये जो पूरा 15 दिन का प्रोग्राम इसको कहते हैं लेवल 1। लेवल 1 में आपको समझना होगा 4 स्टेजेस हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। नंबर 1, कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास जितना भी कर लें, वो जॉब कर लें, नौकरी कर ले या अपना बिजनेस कर लें, कुछ भी कर ले, पैसा वो पैसे कमा ही नहीं पाते हैं। पैसा उनके तरफ आता ही नहीं है, उल्टा भाग जाता है। और लोग उसी चीज में पैसे कमा रहे होते हैं, जैसे ही वो जाते हैं वो पैसा उनसे और दूर भाग जाता है, यानी कि वो पैसे को रिपेल कर रहे हैं। कभी देखे हैं आपने ऐसे लोग? अच्छा, इस प्रोग्राम में आई हाईली रिकमेंड यू टू बी ट्रूथफुल सो दैट वी कैन टॉक डायरेक्टली, ओके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेशक अपना नाम चेंज करके आ जाए, कोई बात नहीं, परंतु यू नीड टू बी रियली अलर्ट एंड बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसा जहां पे भी वो जाते हैं, पैसा उल्टा उनसे दूर भागता है। जस्ट फील इट, ओके। मे बी यू नो सम पीपल जहां पे पैसा वो रिपेल, उसको कहते हैं जैसे कि होता है मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, वो दूर रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब कि पैसा उनसे दूर भागेगा, जिस भी चीज में वो हाथ डालेंगे वहां पर नुकसान हो जाएगा, पैसा उल्टा कम होना शुरू हो जाएगा, उल्टा वहां पर कहते हैं ना बैंकरप्सी या कर्जे, है ना, कर्जे टाइप्स या बैंकरप्सी टाइप्स, या कहते हैं बंटाधार हो जाएगा, वहां पर हो जाता है। अच्छा, इसमें कोई देखिए, इस समय समझेगा, हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं आपको उसके अलग अलग तरह के स्टेजेस को समझना है। There is nothing wrong, but there are certain stages where people face this kind of बेटा एक problem. मिनट रोकिएगा, I won't say एक मिनट problem, but this kind play of रोकिएगा। situation. Okay, they don't know even कि ये सिचुएशन भी पार्ट ऑफ द गेम है, पर वो क्यों ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ पे पैसा उनसे दूर भागता है या वो पैसे को अपनी तरफ खींच नहीं पाते। वी विल टॉक अबाउट इट इन द फ्यूचर। अभी हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम डिटेल में। थैंक यू। ओके एवरीवन, आप चाहे फर्स्ट टाइमर हैं या सेकंड टाइमर हैं, आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मनी मास्टरिंग प्रोग्राम एंड ऑल ऑफ अस आर स्टूडेंट। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप में मास्टरपीस है, जिसको बनाने में हमारे को उस समय 1.5 साल लगा था। इसका एक एक एलिमेंट किसी भी बुक से नहीं है, किसी भी ग्रंथ से नहीं है, हर चीज कहीं ना कहीं से निचोड़ कर बनाई गई है। एसेंस कहते हैं इसको। ये जो पेज भी आपको सामने दिख रहा है ना, कि कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे वो रिपेल करते हैं, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ।
तो जिन लोगों को मजे लेने के लिए यहाँ पे आने की जरूरत पड़ रही है कि हमें मजे आते हैं रिकॉर्डिंग के बजाय लाइव के अंदर, प्लीज मजे कहीं और जाके लीजिए। जिन्हें मनी के मास्टर बनने हैं, मुझे तो बनना है फॉर श्योर, तो मैं जैसा प्रोग्राम चल रहा है मैं वैसे सरेंडर करूंगी। अगर आप इस प्रोग्राम का पार्ट हैं, इट्स गुड, नहीं है आप जाइए प्लीज, यू कैन लीव द प्रोग्राम। अगर आप एमएम का पार्ट हैं ऑलरेडी, आप रिफंड लीजिए प्लीज, बिकॉज ये प्रोग्राम तो ऐसे ही चलेगा जैसा कि इस समय चल रहा है। आप लोग यहाँ पर सीखने आए हैं, स्कूल में जाके बोलते हैं कि मैडम ये तो 8th क्लास में आपने मैं सिखाया था, 9th में सेम ABCD दोबारा क्यों सिखा रहे हो? हमें मजा नहीं आ रहा। मजा लेने आए हो आप यहाँ पर? मनी के साथ बात करो, पैसों से बात करो। पैसे का फॉर्मूला जो आज से 100 साल पहले था या करोड़ साल पहले था या अरबों साल पहले था ना, वही फॉर्मूला सेम अभी भी चल रहा है। फॉर्मूले नहीं बदलते कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। उल्टा एक ही फॉर्मूले पे हमें बार बार अगर काम करने का मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसके ऊपर बार बार काम कर पाए। आप लोगों को ये लग रहा है कि नहीं रिकॉर्डेड में मजा आ रहा है या लाइव में मजा आ रहा है, तो प्लीज अपने दिमाग को थोड़ा संतुलन में लाइए। हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील दैट कि जो अभी आप सुन रहे हो वो लॉ है यूनिवर्स का? कितनों को ये समझ आ रहा है? आप मैजिक बुक को एक बार पढ़ें, चाहे 100 बार पढ़ें, चाहे रिकॉर्डेड पे पढ़े, चाहे लाइव पे पढ़े, आप अगर वहां पे उनका लॉ सीखने आ रहे हैं तो लॉ ही तो सीखेंगे आप उस समय वहां पर। जिसको समझ आ रही है प्रोग्राम में रहेगा, जिसको नहीं समझ आ रही वो अपना रिफंड लेगा। थैंक यू वेरी मच एंड लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई लर्निंग नाउ। मैं अभी इस प्रोग्राम से कुछ सीखने के लिए आई हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द पीपल। बाकी सब लोग जो समझ गए वो ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रही आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कैन वी स्टार्ट विद इट? बात करेंगे, बट कैन यू अंडरस्टैंड, ये भी एक स्टेज होती है। ओके तो इस स्टेज की भी बहुत डिटेल्स होती हैं, मतलब इसमें घर बार बिक जाते हैं लोगों के, दुकानें बिक जाती हैं। इवन जैसे कहते हैं ना, खड़ा खड़ा बिजनेस दिया था पापा ने, तो वो जो खड़ा खड़ा बिजनेस दिया था या घर बना बनाया दिया था वो भी बिक गया, या बिजनेस डूब गया। अगर आप देखोगे ना, कई बार ऊपर देखो थोड़ा आपको दिखेगा, जैसे कि आपको याद हो अभी अंबानी के 2 बेटे थे, है ना, अंबानी के 2 बेटे थे, तो एक बेटे का बिजनेस अगर आप देखेंगे, एक का तो फ्लरिश कर गया, आगे बढ़ गया, जब दोनों अलग अलग हुए तो एक बैंकरप्सी पे आ गया। तो क्या हुआ उसके साथ? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि दोनों के पीछे पढ़ाई लिखाई तो सेम थी, दोनों के पीछे से बैकग्राउंड भी सेम आ रहा है, दोनों को मिला भी इक्वल था। तो ऐसा नहीं कि शुरू से, परंतु कहीं कहीं पे अट्रैक्ट मनी या रिपेल मनी का फॉर्मूला क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है कि क्या होगा वहां पर, कि वहां पर ये स्टेज आई है। ओके सो वी विल वर्क ऑन नंबर 1, जो मर्जी आपके पास रहे हो, जब तक आप अपनी प्राइमरी स्टेज को स्ट्रांग नहीं करोगे। प्राइमरी स्टेज, सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होती है? अट्रैक्ट मनी। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करोगे, यू डू वट एवर, यू डू मल्टीपल कोर्सेज इन मनी, यू डू डिफरेंट बिजनेसेस। आज रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलो, आप चाहे पार्लर का बिजनेस खोलो, आप चाहे इंडस्ट्री खोलो, कुछ भी खोलो, आप देखोगे ऐसे लोगों को उनका एक के बाद एक दूसरा चौथा सारे बिजनेस ठप होते चले जाते हैं। क्यों ठप हो रहे हैं? अच्छा कमाल की बात यह है, कई बार इनकी लॉटरी कोई इनको दे भी देना, जैसे कई बार इनको वो वसीयत में पैसे मिल जाते हैं, तो भी इनके पास नहीं टिकते पैसे, तो वो भी मतलब वो मतलब ये लोग होल्ड, मतलब ये ऐसा पर्टिकुलर स्टेज होती है जहां पर ये लोग अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए। ओके तो वी विल वर्क ऑन इट कि कैसे यू विल बी समवन हु कैन अट्रैक्ट मनी, हु कैन बी अ मैग्नेट टू मनी। ओके दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स, पर अभी हम स्टेजेस चेक कर रहे हैं। नंबर 2, कुछ लोग उस स्टेज पे होंगे जहां पे आप पैसा आता तो है पर आपके पास टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, खर्च हो जाता है। ऐसी स्टेजेस देखी हैं आपने कभी? कभी भी कुछ भी ऐसे खर्चे आ जाएंगे, जैसे कि कोई बीमार पड़ जाएगा तो बीमारी पे खर्चा हो गया, कोई कोर्ट केस आ जाएगा, कोई चलान आ जाएगा, कोई कहीं पे कुछ नुकसान हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसी वाली स्टेजेस आ जाती है कि पैसा आता तो है, जैसे सैलरी आती होगी या प्रॉफिट आता होगा बिजनेस में से, तो आता तो है, मतलब आप पैसा अट्रैक्ट तो कर लेते हो, पर आप उसको अपने पास होल्ड नहीं कर पाते हो, है ना, रोक नहीं पाते हो आप। और जब जरूरत पड़ती है, जैसे जब ऐसा टाइम आता है जब आपको पैसे की जरूरत है, तो उस समय आपके पास पैसा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं आप कमा नहीं रहे हो, पर जब टाइम आएगा पैसे की जरूरत होगी तो आपके पास वो पैसा जुड़ता नहीं है, मतलब रुकता नहीं है आपके पास। ओके तो ऐसी स्टेजेस भी होती हैं लोगों की। तो आप देखें आप कौन से स्टेज पे हो। मे बी आप कहो कि मैं चारों स्टेजेस में से नहीं हूँ, हो सकता है कोई ऐसा भी बंदा हो जाए, हो सकता है आपको मैं चारों स्टेजेस में हूँ, कोई कहे नहीं मैं पहली स्टेज क्रॉस कर चुका हूँ, मैं दूसरे पे हूँ, जहां पे भी हो इट्स ओके, बिकॉज दिस कोर्स अप्लाइज सेम टू ऑल ऑफ यू। ओके नंबर 2 पे ऐसा केसेस होते हैं, जैसे इन लोगों को ना हम ऐसे भी बोलते हैं जैसे इनके हाथ में छेद है
कभी सुनिए ये सेंटेंस आपने, इसके हाथ में तो छेद है, इसके हाथ में तो पैसा रुकता ही नहीं है। ये सब सेकंड स्टेज वाले लोग होते हैं, हाथों में छेद है, पैसा रुकता नहीं है, छन्नी है, समथिंग पैसे वाले बातें जो होती हैं, ये सेकंड स्टेज वाले लोग होते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज के लोग क्या होते हैं? अब हम व्हाट विल बी लुकिंग एट इन दिस प्रोग्राम इज हाउ टू होल्ड मनी, कि पैसा पहले तो अट्रैक्ट करनी है, उसके बाद उसको होल्ड भी करना है, रोकना है अपने पास। ठीक है, रोकना मतलब होल्ड करना है उसको। तो अब थर्ड स्टेज क्या होती है? ग्रो मनी। अब आपने पैसा कमाया, वो आपके पास रुका भी है, और अब आप उसके, कहते हैं ना पैसे में बरकत है, इसके हाथों में बरकत है, इसके पास पैसे की बरकत है। बरकत समझते हो? मतलब कि वो पैसा बढ़ता है इसके पास। कभी सुना ऐसे लोग? कुछ लोग होते हैं पूरी जिंदगी ब्रेड एंड बटर पे, मतलब कहते हैं ना हैंड टू माउथ, पूरी जिंदगी काम भी किया पर हैंड टू माउथ ही रह गए। हाँ, हैंड टू माउथ होते हैं, बस मतलब बस रोजी रोटी चल रही है जी, ऐसे लोग बोलते हुए सुना है कभी आपने? बस जी गुजर बसर हो रहा है जी, रोजी रोटी चल रही है जी। वो वाले पिछले दो स्टेजेस में रह गए लोग। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोज हु नो हाउ टू ग्रो मनी, पैसे में बरकत कैसे लेके आनी है आपको। बरकत मतलब बढ़े, आपका पैसा फले फूले। आपने अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो वो प्रॉपर्टी में फले फूले, आपने किसी जेवरों में इन्वेस्ट किया तो जेवरों में फले, जहां पे भी आपने पैसे को डाला या पैसा आपके पास जैसे भी रहे वो फले फूले। दैट्स कॉल्ड थर्ड स्टेज ग्रो मनी। वी विल टॉक अबाउट इट। कैसे आपने, क्योंकि इंसान को ना पैसा फलता फूलता अच्छा लगता है, परंतु उसको पता ही नहीं होता फलने फूलने के लिए उसको क्या क्या करना है। ओके, एंड दिस इज ऑल साइंस। अगर आप मुझसे पूछो रोटी बनाने के लिए क्या क्या करना है, तो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि हाँ रोटी बनाने के लिए पहले आटा चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर उसको आटा गूंदना है, फिर थोड़ी देर रखोगे, फिर चकला बेलन चाहिए, उस पे उसको आपको प्रॉपरली उसको बेलना है, फिर गैस जलानी है, तवा रखना है, उसके ऊपर फिर थोड़ा तवा गर्म हो जाए तो ही आपने रोटी डालनी है, ठंडे तवे पे रोटी नहीं डालनी है। कैन यू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सिंपल रोटी? फिर रोटी डाल दी तो उसको पलटना भी है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबा के फुलाना है, फिर पलटना है, फिर फुलाना है। जैसे ये एक प्रोसेस है, इसमें से अगर आपने कुछ भी बीच में से स्किप किया तो आपकी रोटी वैसे नहीं बनेगी जैसा कि बननी चाहिए। ओके, सिमिलरली मनी मास्टरिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। आप बीच में कोई भी, अगर सपोजिंगली बीच में मैंने मैंने आटे और पानी को आपस में घोला ही नहीं, या मैंने उसको पतला कर दिया, लेवी जैसा कर दिया, या मैंने पत्थर जैसा कर दिया आटे को, दोनों ही केसेस में रोटी अच्छी नहीं बनेगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ओके, तो थोड़ा शुरू शुरू में हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे ताकि सबको समझ आए। जो हम साइंस की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं थोड़ा सा अलर्ट रहो, समझ आ जाएंगी। ठीक है, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा जल्दी समझ आ सकती है, हो सकता है, पर फर्क नहीं पड़ता। मेन बात सारी की सारी समझने की और प्रैक्टिस की है। एंड एट द एंड आई विल टेक अप ऑल योर क्वेश्चंस टू मेक श्योर एवरीथिंग इज सिंप्लीफाइड। ठीक है, नंबर 4 नाउ ये है जो मिलियनर, जैसे जो कहते हैं ना, जिनके ऊपर छप्पड़ फाड़ के पैसे बरसते हैं। कभी सुने? छप्पड़ फाड़ के, छप्पड़ फाड़ मतलब कि अबंडेंस एनर्जी। ये जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं वहां पर मतलब पैसों की बरसात हो जाती है। इसको कहा जाता है अबंडेंस एनर्जी। मतलब इनकी जिंदगी में पैसा एक रोशनी की तरह होता है, जहां भी चल जाते हैं, जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वहां पर इनको, मतलब वहीं पे कहते हैं ना, हाथ लगाए और सोना बन जाए, मिट्टी को हाथ लगाए सोना बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, इनके पास ये एनर्जी आ चुकी होती है, इसको कहते हैं अबंडेंस एनर्जी। ये हर चीज में बरकत ला सकते हैं। तो ये लोग, ये भी एक स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ तक कैसे पहुंचना है ये भी हम सीखेंगे, अबंडेंस एनर्जी को कैसे लाना है लाइफ में। इतना क्लियर हो गया सब लोगों को? से यस, यहां तक क्लियर है सब कुछ? अच्छा, क्वेश्चन हम बीच में नहीं लेंगे, क्वेश्चन हम एंड में लेंगे। ठीक है, आपको नॉर्मल जो भी लिखना है अपना लिख लीजिए साइड में। तो यहाँ तक क्लियर है? तो ये 4 स्टेजेस की, देखिए इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में हम इन 4 स्टेजेस की मास्टरी करेंगे। आपको इसके ऊपर भी स्टेज होती है? हाँ होती है। पर अभी हमारे को वहां जाने की जरूरत है। देखो आपको कितने चाहिए होंगे, 10 20 40 50 करोड़, है ना? इससे ज्यादा तो भी सब सही होंगे, इतने होंगे, उतने तक आपको ये वाली साइंस पहुंचा देगी। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर रुकेंगे। तो यहाँ इस 4 के ऊपर हम काम करेंगे। नाउ सी, दिस इज व्हाट द साइंस दैट विल बी यूजिंग। साइंस क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप में से कितने लोगों ने मैंने आपको होमवर्क दिया था? क्या होमवर्क दिया था? चलो पहले तो ये बताओ, क्या होमवर्क दिया था पिछले 2 दिन में मैंने आपको? अच्छा, जितने लोग अभी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं प्लीज कम इनटू व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, क्योंकि हमारे सारे असाइनमेंट्स हम वहीं देंगे। तो आप जिस भी मैसेज के थ्रू जुड़े हैं
उसी के थ्रू आपको लिंक मिला होगा जिससे आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं, क्योंकि हम होमवर्क असाइनमेंट वहीं देंगे। तो इनको असाइनमेंट मिला था सब पार्टिसिपेंट्स को टू वॉच सीक्रेट मूवी। ओके, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कितने लोगों ने नहीं देखी? सच बोलना बिल्कुल। देखो सच बोलोगे तो क्या मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी ना कि कैसे आपको संभालना कि कैसे आपको संभालना है ना भाई। इजी देखो, इस गेम में ना सच रहोगे तो इजी रहोगे, वरना तो फायदा क्या फिर यहाँ आने का, है ना। तो जिन्होंने नहीं देखी वो बताओ। अच्छा, कईयों को हो सकता है पता ही ना हो, नहीं देखी तो आज देख लो। ओके, आज देख लो, बिकॉज कल से जो हम बातचीत करेंगे ना, आपको आधी बातें ना आपके सिर के ऊपर से जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेप्थ तो पता नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए वो मूवी आपको काफी काम आएगी। उसको देखो एक बार, वो क्या बोल रही है उसमें, आस्क, बिलीव, रिसीव, ये क्या बात होती है, इसका क्या मतलब होता है। जब मनी का चैप्टर आएगा तो वो क्या बोल रही है, क्या बात नहीं बोलनी, क्या बोलनी, कुछ कुछ पहले उससे सीख लो। ये नहीं कि हम भी सिखाएंगे आगे बढ़ते बढ़ते, पर 15 दिन बहुत छोटे हैं यार पैसों की दुनिया में। आप देखो 15 दिन मतलब बहुत छोटे होते हैं 15 दिन ना, तो थोड़ा बहुत हेल्प ले लो लेफ्ट राइट से भी। ओके, क्योंकि पैसा कमाना हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आई रियली वांट टू मेक मिरेकल्स। और मैं बता रही हूँ कई लोगों की जिंदगी में कल से मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। क्लास में आएंगे, आज हम जो बात कर रहे हैं उसके बाद ही मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी गेम में है। ओके, तो जिनके हो रहे हो प्लीज शेयर विद अस। ओके, जिनके होना शुरू हो जाए। कैसे होंगे मिरेकल्स वो हम आगे चलते चलते आज गेम सेट कर देंगे हम लोग। परंतु जिन लोगों को बिल्कुल गेम में फर्स्ट टाइम आ रहा है, सीक्रेट मूवी विल हेल्प यू अलॉट। प्लीज वॉच इट वंस। मैंने जिंदगी में शायद 70-75 बार देखी हुई है। आप बोलोगे मैडम आपको समझ नहीं आई थी एक बार में? नहीं, वो मूवी ऐसी है, आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई रिपीट, आप सीक्रेट मूवी को जितनी बार देखोगे, 90 मिनट की मूवी है, ध्यान से देखना, अकेले में देखना, ध्यान से देखना, अकेले में देखना और एक बार में देखना। बीच में नो टॉयलेट, नो फूड, नो गप्पा शप्पा, नो मोबाइल चेकिंग, नो नथिंग। कहीं पे भी बैठना, पर ऐसी जगह बैठना जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा आपको। 90 मिनट अपने लिए निकाल कर, ज्यादा नहीं होता, 1.5 घंटा इज अ वेरी स्मॉल टाइम। ओके, परंतु उसको कॉन्सेंट्रेट करके देखना, आपको हर बार कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपने शायद पिछली बार देखने पे नहीं सीखा। ओके, दैट मूवी इज अ सीक्रेट। सीक्रेट समझते हो? रहस्य। रहस्य अपने पर्दे, कहते ना अपना पर्दा एक एक करके खुलता है, तो वो भी हर बार अपने पर्दे अलग अलग तरीके से खुलती है हमारे सामने। तो एनीवेज, यू वॉच इट फॉर वंस और ट्वाइस फॉर श्योर बिफोर यू कम टू टुमारो। क्लियर? से यस अगर सारे लोग एग्री करते हैं। सारे लोग एग्री करते। कुछ कुछ उसके बातें जो मनी से रिलेटेड है वो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, पर फिर भी बेसिक रूल्स आपको वहीं से सीखने पड़ेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एग्रीइंग। नाउ अंडरस्टैंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। अभी हम किस लिए सीखेंगे आकर्षण का नियम? पैसों को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ, ताकि पैसा हमारी तरफ खींचना शुरू हो जाए। जैसे कि आप समझो एक मैग्नेट हो और आप लोहे को खींच सकते हो अपनी तरफ। सबसे नीचे आपको दिख रही है ना फोटो, एक मैग्नेट। तो आपके अंदर अगर इसको कहते हैं चुंबकीय शक्ति, अगर आपके अंदर चुंबकीय शक्ति है, चुंबक तभी आप कहलाओगे ना, और तभी आप लोहे को अपनी तरफ खींच पाओगे। उसी तरह से पैसे को खींचने के लिए आपके अंदर मैग्नेटिक एनर्जीज जो आएंगी, वो हम जो फॉर्मूलाज यूज करेंगे वो सारे के सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूलाज हैं, विच इज वेरी इजी, सिंपल, और बहुत बहुत इजीली आप समझ पाओगे उसको। ठीक है, कैसे करना है वो हम कल परसों में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर वन थिंग फॉर श्योर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो इस ब्रह्मांड की बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी है, जिसको मोस्टली लोग जानते ही नहीं है। आप ऐसे कितने लोगों को नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? से यस, यू लिखो डोंट नो, कि आपने पहले इस बारे में ज्यादा नहीं सुना या आपको किसी ने बताया ही नहीं। डोंट नो, जो नहीं जानते वो बताएं। मतलब जो बिल्कुल नहीं जानते ना, सो दैट वी नो कि हाँ यू डोंट नो। हाँ यार नहीं पता होता, बहुत, मेरे को भी नहीं पता था टू बी ट्रू फ्यू इयर्स बैक। कोई मुझसे पूछे एफर्मेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे लगता है क्या लल्लू लाल बातें करते हैं, अजीबोगरीब बातें करते हैं। सच में मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस था। टिल द टाइम आई रियली गॉट टू नो कि मैंने जिंदगी में जो भी कमाया है, तुक्के से, जाने अनजाने, पर जो भी हमने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जो भी हमने अपने वर्ल्ड टूर्स करे हैं, जो भी मैं मतलब मैं आज बोलती थी, अभी आप लोगों ने देखा है ना, कितने लोगों ने वहां पर अभी किसी के साथ जो भी मेरे वो उस पे गए होंगे, गूगल अकाउंट पे गए, मतलब गूगल पे अगर गए, मतलब
अगर मैं बोलती थी सलमान खान तो सलमान खान से मिलना, शाहरुख खान से मिल लेते थे, मतलब जो भी चीज हम बोलते थे वो हमारे सामने मतलब अवेलेबल होती थी। मतलब ऐसी जिंदगी जिसके अंदर आप जो बोलो वो आपको अवेलेबल है थ्रू यूज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर ये तब नहीं पता था यार कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। तब तो लगता था कि हाँ किसी ने कुछ सिखा दिया, बड़े बुजुर्गों ने अच्छी बात सिखा दी। पर आज उन सब चीजों को जब हम साइंटिफिक वे में समझते हैं तो पता चलता है कि ओ माय गॉड, अगर मैं उस जमाने में अमिताभ बच्चन जी को अट्रैक्ट कर सकती थी, अट्रैक्ट मीन्स उनसे मिलना अट्रैक्ट कर सकती थी, तो मतलब आज मैं इसको भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। आज मैं ये भी, अगर वो बंगला मैंने अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में तो आज मैं ये भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। हाँ, परंतु एक चीज समझना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फुलफिल्स योर रियल नीड। याद रखिएगा, ये इसका रूल है। आपकी जरूरतें क्या है? आपकी जरूरत हो सकता है, आपकी जरूरत हो एक फरारी, आपकी जरूरत हो एक बंगला, आपकी जरूरत हो एक सॉलिटर का स्ट्रिंग, आपकी जरूरत हो एक फॉरेन हॉलिडे। सच्ची में आपको जरूरत है, आपका मन है, आपका दिल से जरूरत है कि आप एक बंगला लो। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल सर्टेनली फुलफिल योर रियल नीड बट नेवर 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 योर ग्रीड। कैन यू अंडरस्टैंड? नीड और ग्रीड में क्या फर्क होता है, हम आगे अभी अगले नेक्स्ट चैप्टर में जा ही रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? Law of attraction will certainly fulfill your need if you know the formulas, if you know the steps। ये आपकी नीड्स जरूर, नीड में कुछ भी हो सकता है। नीड में आप बोलो मुझे 100 करोड़ की नीड है, क्यों? क्योंकि आपने नीड क्रिएट करी है। भाई आपने फैक्ट्री डालनी होगी, कुछ करना होगा, मुझे नहीं पता, आपको एक चॉपर की जरूरत है, प्राइवेट चॉपर, हाँ प्राइवेट जो एरोप्लेन होते हैं, आपको चॉपर चाहिए, क्यों? क्योंकि वगैरह वगैरह जो भी आपकी जरूरत है, जो हम बात करेंगे आगे। If it's your real need, it will certainly fulfill it. It will support you fulfilling it. But if it's your greed, क्योंकि अच्छा आश्विन के पास है चॉपर तो इसलिए मुझे भी चॉपर चाहिए। अब ये क्या हुआ? नीड हुआ, ग्रीड हुआ? भाई आश्विन के पास है बंगला तो मुझे भी बंगला चाहिए। अब ये क्या हुआ? नीड हुआ, ग्रीड हुआ? ओके, तो वी नीड टू बी रियली केयरफुल एज वी गो फॉरवर्ड कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल हेल्प यू फुलफिल योर नीड बट नॉट योर ग्रीड। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो बहुत जरूरी है, हाउ जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको मैनिफेस्टेशन या जो भी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं वो भी हम आगे चैप्टर्स में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा प्लीज। ये नहीं कि आज आपने मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया तो अब आप सो जाओ, अब आपको कुछ नहीं करना, पैसे अपने आप आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो क्या काम करेगा? अगर सपोज अभी आपको पैसे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको मे बी यू से मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए फॉर दिस नीड। ओके, तो आपका ड्रीम क्या है? बी। तो आपका ड्रीम है कि आपने अपने फॉरेन हॉलिडे करनी है, बच्चों की फीस देनी है, बच्चों की शादी करानी है, अपना ये करना है, कराने के लिए आपको इतने लाख रुपए चाहिए, जो भी करोड़ लाख चाहिए होंगे, वो आपका ड्रीम है कि मेरे को ये सब कामों के लिए ये पैसे चाहिए। अब आप ए पॉइंट पे हो और बी तक आपको जाना है। ओके, यानी कि आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको उस पॉइंट तक आपको पहुंचना है। समझिएगा, बहुत टेक्निकल चीज है ये। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगी? ये नहीं कि आप ए पे बैठे बैठे ही आपको बी मिल जाएगा, नहीं, आपको ही उठना पड़ेगा, आपको ही ए से बी तक चल के जाना पड़ेगा। जैसे कि आप नीचे वाली पिक्चर देखेंगे अगर, तो नीचे वाली पिक्चर में भी आपकी कार ए पॉइंट से चली और बी पॉइंट तक जाएगी, यानी आप ए पॉइंट से एक्शन लेना शुरू करोगे, आप बी पॉइंट तक पहुंचोगे। पर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू काम करोगे तो रास्ता कितना साफ मिल रहा है, आपको स्पीड मिलेगी, स्मूथनेस मिलेगी, रास्ते बिल्कुल आपको कहते हैं ना फटाफट हो जाएगा आपका काम, बहुत जल्दी आपके वो डिजायर ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। जबकि अगर आप बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन या बिना मैनिफेस्टेशन अप्लाई किए काम करोगे, अक्सर आपको लाइफ में रुकावटें मिलेंगी, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, पैसे आ रहे थे रुक गए, लुट गए, खर्च हो गए, कहीं पे मतलब वेस्ट हो गए या मिले ही नहीं, पैसे मिलने थे चाहिए, जरूरत थी 100 की, मिले 10 रुपए। ऐसी वाली जो चीजें हो रही होती हैं वो कब हो रही होती हैं? ये ऊपर वाली अगर आप देखोगे, पॉइंट ए से बी तक जाना है, पर रास्ते में ट्रैफिक, रेड लाइट, टकरे, ठोकरे, खड्डे, 10 तरह की चीजें आएंगी। अभी अपनी लाइफ देख सकते हो, कैन यू फील द खड्डे? कई बार पैसों की दुनिया में हम खड्डों में गिर जाते हैं, कई बार स्पीड ब्रेकर इतनी जोर के लगते हैं कि हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, कई बार टकरे हो जाती हैं, कई बार मतलब चाहिए पैसे पर रेड लाइट है, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, मतलब कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा होता, सारे रास्ते बंद दिखते हैं। ओके, तो वो एक नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ ऐसी होती है।
परंतु when you will learn this science, your life will become this. आप यहाँ से शुरू करोगे टक और बी तक कब पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, स्मूथ राइड. ओके, और इसके लिए क्या कैसे करना है वो दैट वी विल लर्न. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट before we start the whole of the game, you need to understand one thing. Money क्या है? मनी लोगों को लगता है रुपया है. How many of you, बच्चा आपके लिए मनी क्या? What is money for you? Everyone answer it. What is money for you? What is money for you? Because this has to be clearly set up before we start the game. What is money for you? और मेरा वाला आंसर देख के टीप के मत बोल देना. देखो सारे टीपू रामो अपने आप से बोलो. Take few seconds and think. For some people, money is luxury. Money is a medium to achieve their dreams. Money is like oxygen. Money is security. Money is a necessity. पैसा, luxury, शक्ति, energy. हाँ, whatever you think. कई लोगों को जैसे इंडिया में रहते हो तो आपको लगेगा money means आपको नोट चाहिए, जैसे रुपया, हाँ, रुपीस जो होते हैं. Please understand. आपको समझना पड़ेगा कि अगर सपोजिंगली आपके पास रुपीस है, रुपीस मतलब कोई जो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो कोई भी जो इंडियन रुपीस है, यानी कि अगर हो सकता है आपके पास एक 50 रुपए का नोट हो, इफ यू कैन सी, ओके, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500, 2000, जो भी नोट है, यू मे से कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हाँ, मतलब जो भी 2000 का नोट है, 2000 का नोट चाहिए, 2000 का नोट चाहिए. Mostly you people really look up to कि मेरे को 2000 का नोट चाहिए. You need to understand one thing before we start the game. Money is not this paper. This paper is paper, but somehow some power is manifested into this paper. Some energy is manifested into this paper. Rather, आपको पता होना चाहिए, कभी आप इस नोट को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पे कुछ लिखा होता है कि मैं धारक को, बताओ आगे क्या लिखा होता है नोट्स के ऊपर, कि मैं धारक को, जैसे 50 रुपए का नोट है या 100 रुपए का नोट है, 500, जो भी 1000 रुपए का नोट है, 2000 का नोट है, आई एग्री टू पे दिस मच ऑफ, क्या लिखा होता है खुद क्योंकि आपको ना इस चैप्टर में घुसने से पहले अपने थोड़ा सा अपना आईक्यू थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. मैं अता करने का वचन देता हूं या मैं धारक को इतनी अमाउंट पे करने के लिए आई एग्री टू पे. ओके, तो यू मतलब आपको आज पढ़ना चाहिए, अपने अपने पास, सबके पास नोट होते हैं ना, तो नोट को निकालो और पढ़ो. ओके, व्हाई? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड इस कागज के टुकड़े को ये पावर किसने दी, इसको ये एनर्जी किसने, एनर्जी मीन्स शक्ति, ताकत, ऊर्जा, उष्मा, ये इसको किसने दी? बताओ भैया, इंडिया में कौन देता है इसको ये पावर? इंडिया में इस कागज के टुकड़े को पावर कौन देता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज, जैसे आपको याद होगा, हमारे ही देश में थोड़ा टाइम पहले बहुत ही कमाल का सीन था. मैं चैप्टर ये तब भी लीड करती थी, पर उस दिन उस मोमेंट को जी कर मैंने इस चीज को समझा कि ये तो सच बात बोली. बिल्कुल, देखो अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आप सिर्फ समझ रहे हो, पर जब आप इस बात को जियोगे ना तो आपके लिए रियल हो जाएगी कि हाँ ये सच है. I remember that was a few years back time, and I was मेरे घर में काफी सारे बच्चे हैं. I live in a shop here with my father-in-law, mother-in-law, my जेठ जेठानी उनके बच्चे, my देवर देवरानी उनके बच्चे, and me, my husband मेरे बच्चे, तो हम सबके बच्चे, मतलब कि हमारे घर में 7-8 बच्चे हैं. एंड मेरे ननद के भी बच्चे हैं, तो कई बार वो भी आ जाते हैं हमारे घर में, तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं. So I remember that particular day. It was a beautiful, slight winterish day, and I was at my work, and I came back from my work to my home. And घर आई तो सब बच्चों ने बोला डिनर पे चलेंगे. तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे चाइना, उस समय उनका चाइना बिजनेस, काफी साल पुरानी बात है, तो काफी बिजी रहते थे, तो उनके टूर होते थे, तो गए हुए थे. तो मैंने कहा ठीक है चलो, सारे बच्चों को मैंने कार में इकट्ठा किया और बच्चों को मैं ले गई अपना रेस्टोरेंट में. एंड मैंने पर्स में पैसे रखे हुए थे, और नॉर्मली पर्स हम लोग नॉर्मल रखते हैं, तो मैं उस समय, उस जमाने की बात कर रही हूँ, तो उस समय 1000, 500 ये चलते थे. तो मैंने 1000 के थोड़े ज्यादा नोट डाल दिए कि बच्चे खाते पीते हैं ज्यादा, अच्छा रेस्टोरेंट था, तो हम चले गए जी वहां पर. ओ जी, वहां पे जाके खूब खाया पिया बच्चों ने, अपना मजे किए. चलो ठीक है, रात के हो गए होंगे अराउंड 10:30, 11 बज गए.
तो एकदम से 11 बजे तो मेरे फोन पे बार बार मैसेज आ रहा है मेरे पापा का। तो मैंने कहा पापा को क्या हुआ, और बच्चे साथ थे, शोर बहुत था उधर रेस्टोरेंट में, तो मैंने फोन उठाया नहीं। मैंने कहा मैं करती हूँ कार में बैठ के, शोर में क्या करूंगी। तो आसपास हलचल होनी शुरू हो गई जी, पता नहीं रेस्टोरेंट में भी दिख रहा है कुछ अजीब सी हलचल हो रही है यहाँ पर, मतलब सब कुछ हलचल हो रही है। तो पता नहीं क्या हो गया, तो एकदम से मैंने को भी समझ नहीं आया क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ नहीं थे। हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील इट, यू कैन फील दिस मोमेंट कि यहाँ कुछ हो रहा है, मतलब अराउंड 11 बजे का टाइम हो रखा है, कुछ होने लग रहा है आसपास। एंड सडनली मेरे पापा का बार फोन बजा, तो मैंने उठा लिया फोन। मैंने कहा हाँ पापा क्या हुआ, मैं आपको कर लेती फोन, अभी मैं थोड़ा बिजी थी। तो कहते तूने सुनी, न्यूज सुनी है। मैंने कहा कौन सी न्यूज। पापा कहते तेरे को अभी तक पता नहीं चला है, मतलब आज वो नोट बंद होने वाले 500,000 दोनों के नोट बंद होने वाले हैं, 12 बजे के बाद लीगल नहीं है, नोट नहीं चलेंगे। मैंने कहा है, मैंने कहा पापा आपने फिर से वो जो होती है ना बेहुदा खबरें व्हाट्सएप की बेहुदा खबर होगी आपकी, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। पापा कहते पागल बेवकूफ, प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर न्यूज पे बोल रहा है, देख उसको। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब 500,000 रुपए बंद कर देंगे, ऐसे क्या मतलब, ये क्या मतलब हुआ। तो पापा कहते देख एक मिनट, जो भी था मेरे तो मतलब होश उड़ गए, क्यों, क्योंकि अच्छा समझ नहीं आया उसी समय। मैंने कहा क्योंकि हमारे तो घर में थी उस समय बैंक लॉकरों में और घरों में होते ही यही थे 1000 और 500 के नोट, और क्या था हमारे पास, इसी में जुड़ते थे सब चीजें हम लोगों की उस जमाने के अंदर। तो जी ये कैसे हो सकता है यार, ये ऐसे नहीं हो सकता। हम तो मतलब करोड़पति बने किस लिए, हजारों की गड्डियां हमारे पास वो जमाना होता था वो। तो जी वो मोमेंट था एक, हजारों की गड्डियां हैं हमारे पास, पर पावर वापस खींच ली किसी ने। कैन यू फील दैट मोमेंट, एनर्जी वापस खींच ली किसी ने। अब वो 1000 का नोट नहीं रह गया है, वही नोट जो अभी। अच्छा सबसे कमाल की बात, मैं वहां पर बंदे को मैंने कहा भैया बिल ले आए, हम निकलेंगे चलो, मतलब हर किसी के पैरों में जमीन सरक गई उस टाइम पर। तो जी मेरे को भी निकलना था, घर जाके बहुत कुछ करना था अभी, तो मतलब समझ उस समय तो अब बदहवास हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, पर बिल तो पे करना है ना। मेरे को भैया बिल ले आओ, बिल आ गया जी। मैंने उसमें 4000 समथिंग का आया था, बच्चों ने वॉफल वूफल ही खाए थे, तो 4000 समथिंग का बिल था। तो मैंने 5 नोट रख दिए 1000 रुपए के। कहता मैडम 1000 रुपए का नोट नहीं लेंगे मैंने कहा तो ये क्या बात हुई। तो मतलब आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ लाइक अ रिच वुमन अ फ्यू सेकेंड्स बैक, एंड सडनली आई बिकेम अ beggar because I was having 1000 rupee notes which was no more in power right now. और मैंने उसको कहा भैया हमारे पास पैसे नहीं है। तो नहीं मैडम 1000 रुपए का नोट नहीं लेंगे हम। मैंने कहा ये क्या बात हुई, तो कहता नहीं मैडम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा मैं कहाँ से लूं, मेरे पास तो है। अच्छा हम लोग जनरली अपने पर्स में चिल्लर रखते ही नहीं थे, 100-200 नहीं रखते थे, क्योंकि 1000 या 500 पड़ा तो काम हो जाएगा। तो जी वो अब निकलना भी जरूरी है, वो बंदा लेने को तैयार नहीं 1000 रुपए के नोट। तो भैया जितने बीच में 100-50 वाले थे वो सारे खाली किए, बच्चों की जेबें खाली करवाई, जिसके भी 100-50 जो भी निकले कर करा के किसी तरह से। मैंने कहा भैया इतने ही है हमारे पास, लेने हैं तो लो, नहीं तो हम जा रहे हैं। तो जो भी कर करेगा चलो, नक्की किया और निकले वहां से। वो एक मोमेंट था, उस मोमेंट ने पूरी लाइफ के लिए एक लर्निंग दे दी कि आपके पास जो ये पैसा है, ये जो कागज का टुकड़ा है, ये तब तक पावरफुल है जब तक इसमें पावर मैनिफेस्टेड है। जिस दिन इसमें से पावर वापस खींच ली जाएगी, इट विल बिकम जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अग्री टू इट? जस्ट से यस इफ यू कैन अग्री, इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि मनी इज नॉट दिस पेपर, मनी इज द एनर्जी मैनिफेस्टेड इनटू इट। वही एनर्जी उन्होंने उस 1000 रुपए में से नोट में से निकालकर 2000 रुपए के नोट में डाल दी। ओके, तो आप इस पैसे या इस रुपीज या इस कॉइन, इसके पीछे भागोगे, पूरी जिंदगी उलझोगे। आपको मनी को, एनर्जी को फील करके एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। से यस इफ यू कैन एग्री और यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, तो इसमें कोई पावर, कोई एनर्जी है, यानी कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है जो इसमें मैनिफेस्टेड है, और मुझे उस शक्ति, उस ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। और नाउ दैट कैन बी इन एनी फॉर्म। इन एनी फॉर्म मतलब कि हो सकता है वो रुपीस के फॉर्म में हो सकता है वो गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, डॉलर के फॉर्म में हो, येन के फॉर्म में हो, रिंगट के फॉर्म में हो, किसी भी करेंसी के फॉर्म में हो सकती है, या किसी भी रूप में आ सकती है एनर्जी आपकी तरफ। ओके, पर वो एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट वी विल बी टीचिंग यू। से यस इफ यू आर क्लियर राइट नाउ। ओके, तो इट्स नॉट अबाउट द, एक और बात ये समझिएगा, जैसे कि आपके पास सपोज कई लोग प्लास्टिक मनी यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह। ओके, अब आपके पास डेबिट कार्ड है, उसमें पैसे हैं, हाँ बहुत पैसे हैं फॉर एग्जाम्पल,
या क्रेडिट कार्ड है पर पैसे हैं, अब आप सड़क पे जा रहे हैं, आपका ये लॉन्ग ड्राइव पे, अभी वीकेंड था, आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए ऋषिकेश की तरफ, हाँ रास्ते के अंदर, ऋषिकेश नहीं समझो कोई भी एरिया जहाँ पे रास्ते में गाँव वाँव भी आप क्रॉस कर रहे हो, अच्छा आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आप हो उस तरह के कॉर्पोरेट टाइप बंदे, हाँ हमेशा वही प्लास्टिक मनी यूज करने वाले बंदे, तो ठीक है रेस्टोरेंट्स में शॉप्स में यूज होता है, पेटीएम यूज हो जाता है, क्रेडिट कार्ड यूज हो जाता है, तो आपके पैसे तो हैं, परंतु उस समय जब टायर पंचर हुआ तो आप किसी छोटी मोटी दुकान को ढूंढे, टायर अपना ठीक करवाया, अब उसको पैसे देने हैं, पैसे कितने दे, 30 रुपए देने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप 30 रुपए दे रहे हैं, आप उसको क्रेडिट कार्ड दे रहे हो अपना, वो कह रहा है नहीं बाबूजी पैसा लूंगा, नहीं बाबूजी पैसा लूंगा, नहीं जाने भी नहीं दे रहा आपको, और आपको 30 रुपए, आपके पास 30 रुपए है ही नहीं, क्योंकि आप कैश में डील ही नहीं करते, आप क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी में डील करते हो सारा का सारा, या पेटीएम, आप करो पेटीएम ले ले, वो कह रहा है पेटीएम भी नहीं है, आपके पास पैसा है परंतु इस समय वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, पर ये नहीं कि पैसा नहीं है, ध्यान से समझने वाली गेम है ये बहुत टेक्निकल गेम है, जो समझ पाएगा उसको समझ आएगा कि पैसा किसी रूप में, किसी प्लास्टिक मनी में, किसी करेंसी में, किसी कॉइन में आप ये जो देख रहे हो, दिस इज नॉट व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट, गेम इज ऑल अबाउट एनर्जी, एनर्जी मैनिफेस्टेड इन, चाहे वो प्लास्टिक मनी हो, चाहे वो कोई भी करेंसी हो, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो। How many of you can understand? Say yes, because this is the baseline. क्योंकि हम जो आगे काम करेंगे वो एनर्जी पे काम करेंगे, वो एनर्जी कैसे भी, वो एनर्जी आपके पास चाहे एक आई डोंट नो किस रूप में आएगी, वो किस रूप में आपको बुलाना है, कैसे काम करना है, वो आगे काम, पर आप हर समय देख ही रहो गड्डियां, हाँ गड्डियां, हजार की गड्डियां देख, मैंने अपनी जिंदगी में अपने पैरों को खुद को लाड़ी मारी हुई है आप सोचते हो मैडम फिर वो हजार की गड्डियों का आपने किया क्या, मुझसे क्या पूछ लो, बाकियों से भी पूछ लो क्योंकि हमारे पार्लर्स थे ना, लेडीज पार्लर है, तो लेडीज पार्लर्स मतलब मेरे चेन ऑफ सलोन्स है मेरी, तो हमारे उस जमाने तक ना कोई देता ही नहीं था सर्विस टैक्स, टू बी वेरी ट्रू, सच बोलूं तो, मतलब सच वाली बात, तो कुछ पाने की क्या बात है इसमें, सर्विस टैक्स कोई औरत देती ही नहीं है, हाँ तो अगर उनको कोई 18% सर्विस टैक्स दो, जीएसटी दो, कोई नहीं देती थी, तो जब तुम टैक्स ही नहीं दे रहे, हाँ तो फिर तो क्या कैश में लोगे तुम, तो फिर तुम क्यों लोगे क्रेडिट, हमारे पार्लर में से कैश ही ज्यादा डील होता था उस जमाने में, तो कैश ही आता था, कैश ही लग रहा होता था, कैश ही इन्वेस्ट हो रहा होता था, हर जगह पे कैश में हम जोड़ रहे होते थे, कैश में सब कुछ काम चल रहा होता था, भैया ऐसे भी देखो टाइम होता था तो वो कैश में जब हम काम कर रहे हैं, तो कैश का सबसे बड़ा रुपीस होता ही उस जमाने में 1000 रुपये होता था, 1000 की गड्डियां बना के जो भी हम काम कर रहे होते थे, भाई प्रॉपर्टीज में भी ऐसी डील होती थी हमारी, करोड़ों रुपए की वो गड्डियां, मतलब मैं बता रही हूँ वो मोमेंट था जिस दिन जब हमें समझ आया कि इट्स नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर, इट इज द एनर्जी, और बहुत नुकसान हुआ हमारा, बहुत डूबा पैसा उस टाइम के ऊपर, बहुत नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ दिस समथिंग जो हुआ ये वाला, परंतु कुछ ही महीनों में वापस रिवाइव हो गया, कुछ ही महीनों में वापस रिवाइव हो गया, और रादर पहले से बेटर रिवाइव हुआ, क्यों समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से पता था ये एनर्जी है, ये हमारा वो तो तब हमारे पास साइंस नहीं थी, परंतु अंदर से पता था ये वाली बात कि जो भी हम कर रहे हैं ये दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूलाज कुछ कच्चे पक्के पता थे अंदर से कि कोई बात नहीं, अभी नुकसान हुआ है, डूबे हैं पैसे, बहुत जो भी झटका लगा, कोई बात नहीं, फिर से ठीक हो जाएगा। कई लोगों के लिए वो टाइम बहुत मुश्किल टाइम रहा, कई लोगों के लिए भी कोरोना टाइम के अंदर जब वो बिजनेस एकदम से ठप हुए, बहुत मुश्किल टाइम रहा, क्योंकि वो पैसे की तरफ फोकस कर रहे थे, पैसा भी किस फॉर्म में, क्रेडिट, डेबिट, बैंक मनी, चेक मनी, करेंसी मनी, इसके ऊपर फोकस कर रहे थे, जबकि आप इस पे फोकस करोगे तो आप बहुत 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 बंद जाओगे, आप बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये आपका एंड रिजल्ट नहीं है, ओके, वो जो करेंसी है या आपका जो पेपर मनी है वो सिर्फ आपको चीजें खरीदने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो एक तरह का मीडियम है टू गेट यू व्हाट यू वांट, बट एक्चुअली में जो चीज है वो आप तक कैसे पहुंच सकती है, ये इस एनर्जी का लेन देन है, वो ये थोड़ी अभी थोड़ी हो सकता है, थोड़ी सी आपको लैंग्वेज नई लगे, बट आगे बढ़ते बढ़ते यू विल बी अ मास्टर ऑफ इट, ओके। और आज हम इस बारे में जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, so that you are clear about it, कि money is energy and it's all about an energy exchange game, energy exchange game, energy contract भी होती है, expand भी होती है, how many of you understand? energy बढ़ती भी है, energy सिकुड़ती भी है, बढ़ भी सकती है, सिकुड़, जब आप इसको एनर्जी की तरफ गेम को खेलोगे तो ये आपके हाथों के अंदर एक ऐसा जादू आ जाएगा जिसको बढ़ाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा,
आप बोलोगे मेरा बिजनेस तो इतना ही है, मेरी सैलरी तो इतनी है, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे को कैसे कमाऊं, मैं तो कुछ कमाती ही नहीं हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, आप जहां पे देख रहे हो वो एक करेंसी मनी की तरफ है, या आप किसी एंड रिजल्ट की तरफ देख रहे हो, किसी बैंक मनी, करेंसी मनी या नोट की तरफ। मैं कह रही हूँ इसको एनर्जी की तरफ फील करो। वंस यू फील इट एन एनर्जी, you are the master of expending it, you are a master of attracting it। कैसे सीखेंगे ना 15 दिन में, ठीक है? यहां तक क्लियर है जी? क्योंकि आज का असाइनमेंट बहुत जरूरी है, उस पर हम आ जाएंगे। अब यहां तक क्लियर है? नहीं है तो लिख लो, जिनको नहीं क्लियर वो लिख दे क्वेश्चन। क्या क्यों लिख दें? क्यों मतलब कि अभी हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो क्यों लिख दे, क्यों मतलब क्यू फॉर क्वीन वाला क्यू, ठीक है? वो लिख दें, ठीक है जी। चलो, जिनको समझ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का बेटा जी बेसिक एक बार क्लास है, कल रोकेंगे, से हम इसको स्टार्ट करते हैं फुल स्पीड के अंदर। होल्ड करें एक बार। थैंक यू वेरी मच। So everybody, we are even as I said, even I am learning because ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो कहते हैं ना ग्रेस से बना था, किसी की रहमत से बना था उस टाइम पर। एंड इवन आई वांट टू लर्न कि जो उसमें मैंने सीखा या इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया, हाउ कैन आई रीयूज इट, रीलर्न इट। तो अभी अभी एक लाइन मैंने सुनी जो कि गजब की लाइन थी, एंड मैंने भी अभी सुनी पहली बार कि पैसा कमाना या पैसा बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है। So, जैसे मैंने सुनी, suddenly something struck to me because in the field of शिवा एंड शक्ति हम जब बायां और दायां की बात कर रहे होते हैं, तो आज के असाइनमेंट में बाकी असाइनमेंट के साथ एक चीज और आज आप ऐड करोगे अगले 15 दिन के लिए। Everybody, are you listening to me? Am I clear? Am I audible? तो आज से आप एक असाइनमेंट ऐड करोगे, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स, कि आप हर रोज अपने जो भी आप पेमेंट दे रहे हो किसी को भी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हो चाहे कैश पेमेंट कर रहे हो, आप अपना बायां हाथ यूज करोगे उसके अंदर। एवरीबडी, इफ यू आर गिविंग पेमेंट टू एनीवन, इंस्टेड ऑफ योर राइट हैंड, you will be using your बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, ओके? एंड यू विल बी रियली ग्रेटफुल। आप दिल से शुक्राना करोगे, दिल से बहुत ज्यादा आभार फील करते हुए बाएं हाथ से दोगे। सो लेट्स सी, 15 दिन तक ये वाला हम लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस के अंदर एक एडिशन करेंगे कॉन्शियसली, कि हम बाएं हाथ से ही, अगर कोई प्रेस आप बटन भी प्रेस कर रहे हो पे करने का, आप अपना बायां हाथ यूज करोगे। तो और बाएं हाथ के लिए भी मैक्सिमम ग्रेटफुल रहोगे, अपने फिंगर्स के लिए, अपने प्रेसिंग के लिए। लेट्स सी क्या ये डायरेक्शनल चेंज से कुछ फर्क पड़ता है हमारी लाइफ के अंदर, बिकॉज राइट नाउ माय थीसिस, द करंट थीसिस इज गोइंग ऑन डायरेक्शंस। तो लेट्स सी दैट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पॉजिंग। थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू। एक क्वेश्चन है, तो देते हुए लेफ्ट हैंड यूज, इंग्लिश में लेफ्ट हैंड हो गया, हाँ, बायां मीन्स लेफ्ट। देते हुए लेफ्ट हैंड एंड रिसीव करते हैं। मतलब हम करेंसी के अंदर हम कोशिश करेंगे अगले 15 दिनों में, एक बार ट्राई करते हैं कि ये करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बायां हाथ का खेल कुछ ना कुछ रिडल है जो मुझे अभी भी क्लिक करी है। तो एक बार बायां हाथ यूज करते हैं पैसे को लेने और देने में। जब भी ले रहे हो, मतलब एक बार आप बाद में काउंट कर रहे हो तो आप दायां हाथ यूज कर सकते हो, पर कोशिश कीजिए पैसों के मैक्सिमम लेन देन में बायां हाथ टच करने और ग्रेटफुल होने का कोशिश करते हैं। लेट्स सी, इवन आई एम लर्निंग। मैं अभी आज से शुरू करूंगी ये फॉर्मूला यूज करना। सो गिविंग एंड रिसीविंग बोथ विद लेफ्ट हैंड। हाँ, ओके। हम लेफ्ट हैंड से देते हो और थैंकफुल भी होंगे उस समय पैसे के लिए, क्योंकि माया की दुनिया है, लक्ष्मी की दुनिया है। एंड लक्ष्मी की दुनिया, जब हम बाया और दाया का खेल खेल रहे होते हैं, तो मिथ्या वो है उसी पार्ट, उसी तरफ का पार्ट है। ये तो मुझे क्लियर है, पर ये मैंने आज पहली बार सुना और पहली बार मैं इसकी प्रैक्टिस शुरू करूंगी। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या करता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम लोग एक, अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये सब हम आपको समझाएंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। पर अभी ले लीजिए इसको। तो अभी क्या करना है, आज हमने सबने कॉपी पेन रखा हुआ है अपने पास? ओके, यू हैव योर नोटबुक एंड पेन। और ये एक ना नोटबुक पेन 15 दिन के लिए फ्रेश स्टार्ट कर लेना आज, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। आगे चाहे बनाओ तो वो बना लेना जो आप बनाना चाहते हो, ओम, स्वास्तिक, वो जो भी अपने चिन्ह होते हैं कोई आप लोगों के फेवरेट, को बना लेना, बिकॉज दिस विल बी अ होली बुक फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड। आई एम टेलिंग यू, मनी इज वेरी गुड। पैसा बहुत बहुत प्यारी चीज होती है। मैं ये नहीं कह रही अगेन कि सब कुछ होता है, नहीं, पर पैसा एक प्यारी चीज है। आप इसको यूज कीजिए। कैसे? जैसे सब्जी बनाते हो,
सब्जी बनाते हो, आपने बहुत अच्छी टमाटर की सब्जी शाही पनीर बनाया फॉर एग्जांपल, हाँ बड़ा अच्छा, उसमें काजू भी डाला, ड्राई फ्रूट्स भी डाले, पनीर डाला बेस्ट क्वालिटी का, आपने बहुत अच्छी उसकी ग्रेवी बनाई, प्यूरी बनाई, सब कुछ बनाया, पर उसमें नमक नहीं डाला। अब स्वाद कैसा आएगा? स्वाद कैसा आ रहा है बिना नमक के? मजा आ रहा है एवरीवन? यस नो मे बी? फीका फीका सा लग रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है ना, टेस्टलेस, बेस्वाद। तो जिंदगी ऐसी होती है पैसे की तंगी में ना जिंदगी बेस्वाद होती है तो जैसे कि सब्जी में नमक होना जरूरी है, वैसे जिंदगी में पैसा होना जरूरी है। परंतु आप सब्जी में सारे नमक डाल दो, हाँ भर के नमक डाल दो, तो अब सब्जी कैसी बन जाएगी? जहर जैसी बन जाएगी ना, बहुत कड़वी हो जाएगी, है ना। अगर बहुत ज्यादा नमक डाल दो तो भी गड़बड़ है। तो पैसा एग्जैक्टली ऐसे होता है, ये उतना ही होना चाहिए जितना कि आपके स्वाद अनुसार, यानी कि आपकी जरूरत अनुसार। हर किसी की जरूरत अपनी अपनी है, प्लीज ऑलवेज अंडरस्टैंड, हर किसी की जरूरत अपनी अपनी है, और पैसा हमेशा आपकी जरूरत अनुसार, आपके स्वाद अनुसार, आपकी लाइफ में होना जरूरी है। हाँ, टेबल पे एक स्प्रिंकलर अलग से रख लो, कभी कोई ज्यादा डालना चाहता है, चलो स्प्रिंकलर है उसके पास, हल्का सा कभी टेस्ट बढ़ गया है तो। परंतु ऐसे तो कोई नहीं करता ना नमक में, जैसे ही मेरे पास नमक खा रही हूँ मैं, हाँ जितना मेरा टेस्ट है, अब सपोज साथ वाला बैठ के बहुत सारा नमक खा रहा है तो मैं भी बहुत सारा नमक खाना शुरू कर दूंगी। ऐसा कोई करता है क्या कभी? या मेरे इधर वाला फीकी सब्जी खाता है, उसको फीकी सब्जी पसंद है, बिल्कुल कम नमक है, वेरी मिनिमम नमक। होते हैं कई ऐसे सिंपल लिविंग हाई लिविंग, होते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग काइंड ऑफ पीपल, उनको बिल्कुल कॉटन के कपड़े पहन के खुश रहते हैं वो लोग, सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखा दो, हाँ रिक्शे पे घूम के खुश रहते हैं, तो उनको कम नमक में भी चलता है उनका। भाई मेरा नहीं चलता उस कम नमक में, मेरे को थोड़ा सा ठीक चाहिए नमक, ना कम ना ज्यादा, हाँ तो मेरा ये वाला टेस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए आपका वाला स्वाद क्या है, आपकी वाली जरूरत क्या है। आप प्लीज ना इधर देखिए ना उधर देखिए, इधर देखोगे उधर देखोगे तो पूरी जिंदगी उलझे रह जाओगे। आज आपका असाइनमेंट है, व्हाट इज योर नीड? एवरीवन, यू हैव टू राइट डाउन फॉर योरसेल्फ, राइट व्हाट यू वांट। व्हाट मतलब आपको एक्चुअल में, और इसमें ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब तरह की जरूरतें होती हैं। शॉर्ट टर्म मतलब कि अभी इमीडिएटली क्या क्या खरीदना है मुझको, पैसों की बात नहीं कर रही मैं कि पैसे तो हमने देख लिया, पैसा कुछ होता ही नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आप बोलोगे मुझे घर खरीदना है, हाँ मुझे बच्चों की शादी करानी है, हाँ मुझे एक आईफोन खरीदना है, हाँ मुझे एक पर्स खरीदना है, हाँ मुझे घर की ग्रोसरीज खरीदनी है, हाँ दूध खरीदना है, हाँ फीस देनी वगैरह वगैरह, हाँ ये वाले, ये आपकी नीड्स हैं। तो कैन यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू राइट डाउन योर नीड्स। जितनी लंबी लिस्ट बना सकते हो बना लो, आज का असाइनमेंट है ये। जितनी लंबी, और बेटर ये होगा, जैसे कि हो सकता है आपको 10 साल बाद, हो सकता है आपको अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी करनी है, हाँ ओल्ड एज सिक्योरिटी करनी है, बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए, ठीक है सब लिख लो पहले। फिर सबको लिखने के बाद उनको मंथली डिवाइड कर दो। मंथली डिवाइड मतलब आई ऑलवेज प्रेफर कि आप मंथली डिवीजन लिया करो। मंथली मतलब हर महीने मेरे इतने खर्चे हैं, जिसके अंदर मेरे बच्चों की शादी के लिए मैं इतना जोड़ूंगी, ओल्ड एज के लिए इतना जोड़ूंगी, घर के इंस्टॉलमेंट देनी है, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट देना है, ये करते करते, चाहे वो आपकी फ्यूचर की नीड है, भाई बच्चे की शादी आज से 10 साल बाद होनी है, पर आप अभी से हर महीने उसके लिए कुछ जोड़ना चाहते हो, ओके। तो उस तरह, जैसे आपको हो सकता है 4 महीने बाद आपको एक वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, परंतु वो 4 महीने बाद जो 4 लाख रुपए है, आप उसको, जैसे हो सकता है अभी से हर महीने आप लाख लाख रुपए जोड़कर उस चीज को आप मटेरियलाइज करना चाहते हो, ओके। तो पहले तो टोटल लिस्ट बनाओ, फिर उसको मंथली डिवाइड करो। कैन यू अंडरस्टैंड? मंथली इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। उसको हम डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, बट आई थिंक मंथली इज द बेस्ट स्ट्रक्चर टू फॉलो, जिसमें रिजल्ट्स बहुत बढ़िया दिखते हैं, जो मैंने पिछले कई सालों में अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ नोटिस किया है। तो कैन, हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आपकी मंथली वांट्स है उनकी लिस्ट बनानी है आपने। उसमें ये भी लिख सकते हो आप, आपके मतलब कि अपने बच्चे की शादी जो 10 साल बाद करनी है, उसका मंथली आप कितना जोड़ना चाहते हो। पर ये आपकी नीड है ना भाई, बच्चे की शादी करनी है तो जोड़ना तो पड़ेगा आपको, है ना। या अपने लिए कुछ जोड़ना चाहते हो कि मेरे को सॉलिडरी स्ट्रिंग खरीदनी है, या मेरे को बंगला खरीदना है, तो ठीक है, जो भी करना है उसको यहाँ पे लिखो, अमाउंट लिखो। तो व्हाट यू नीड, क्लियर?
से यस, ये असाइनमेंट समझ आ गया? नहीं आया तो भी हम क्वेश्चन आंसर ऑन करने वाले हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन लिख लेना, मुंह से नहीं बोलना, लिखना है नीचे चैट बॉक्स में, ओके, सो दैट आई कैन टेक मैक्सिमम क्वेश्चंस। लिखोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा ना व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ओके, सो नंबर 1 इज राइट व्हाट यू वांट। तो आप जब कल सुबह आएंगे वापस सेशन में, आप सबकी लिस्टें तैयार होनी चाहिए कि एक्चुअली में दिस 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 दिस, डोंट से कि मेरे को 50 लाख रुपए महीने का चाहिए। व्हाई? बिकॉज आई विल बी आस्किंग व्हाई यू वांट इट। अगर आपको महीने का 50 लाख रुपए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट हाँ दिस इज व्हाट आई वांट इज 50 लाख रुपए, सेकेंड क्वेश्चन विल बी व्हाई यू वांट इट। तो आपको तब लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना कि 50 लाख में आपने खर्चे क्या क्या करने हैं। तो आप लिख सकते हो कि मैं मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, मेरे को एक बंगला खरीदना है, मेरे को ये खरीदना है, वो खरीदना है, जो भी आपको है। बट प्लीज अंडरस्टैंड इट शुड बी योर रियल रियल रियल, क्योंकि अगर आप जो भी अमाउंट लिख रहे हो उसका आप वाई नहीं लिख पाओगे कि क्यों चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ मुझे घर चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि अभी मेरा घर छोटा है, अभी मेरे घर में 2 रूम है, मेरे को 4 कमरों का फ्लैट चाहिए या बंगला चाहिए, या अब जैसे गाड़ी चाहिए, मैं कहूँ मुझे मेवाक चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि अभी मेरे पास ये वाली गाड़ी है, पर अब मैं जिस सर्कल में घूम रही हूँ उस सर्कल के अंदर मेरे पास लग्जरी कार होनी चाहिए, मेरे को वहां पे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो लग्जरी कार का इंप्रेशन अच्छा होता है वगैरह वगैरह, और मुझे अच्छी लगती है लग्जरी कार। तो यू शुड नो व्हाई यू वांट इट। आपकी हर एक नीड ग्रीड नहीं है, इसका इकलौता सबूत होता है अगर आप उसके वाई क्रिएट कर पा रहे हो। तो अगर किसी भी चीज के लिए आपके पास वाई नहीं निकल पा रहा तो मान जाना वो आपकी नीड नहीं है, वो ग्रीड का पार्ट है। अगर आपकी वो जरूरत है तो आपको पक्का पता होगा कि आपको वो क्यों चाहिए। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर आपको एक चॉपर भी चाहिए तो क्यों चाहिए। चॉपर मीन्स प्राइवेट एरोप्लेन, तो चॉपर भी चाहिए तो क्यों चाहिए। हाँ मुझे चॉपर चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी मीटिंग्स होती हैं, कभी मेरी यहाँ दिल्ली में है, कभी बेंगलोर जाना है, कभी मेरे को गाँव में भी जाना होता है अपनी मीटिंग्स के लिए, फिर मेरे को हर बार वो एयरपोर्ट जाना है, वापस आना है, फिर वहां पे वेटिंग होती है, कभी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, फिर वहां पे खड़े हुए लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है गाँव के अंदर जो बेचारे वेट कर रहे होते हैं। तो मेरे को एक प्राइवेट चॉपर चाहिए क्योंकि मेरे को बहुत जरूरी है अपनी मीटिंग्स को फैसिलिटेट करने के लिए। ओके ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन रहा है, यूनिवर्स सुन रहा है आपकी बातों को, तो उसको समझ आ गया कि हाँ आपके बिजनेस या आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपको प्राइवेट चॉपर की सच में जरूरत है, बिकॉज ऑफ दिस 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 रीजन, जो आपने रीजंस दिए। तो आपको समझना है व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट। यहां तक क्लियर है सबको? व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट। और नॉर्मली एक इंसान की क्या टेंडेंसी होती है, जैसे ही आपने बोला व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट इट, तीसरा अपने आप निकल के अंदर से क्वेश्चन आता है बट ये होगा कैसे। कितनों को आ गया था ऑलरेडी ये क्वेश्चन अंदर से कि ये होगा कैसे। पर हाँ मुझे जरूरत है एक बंगले की, क्योंकि मेरा घर बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे को एक बड़ा अच्छा घर चाहिए, मेरे को गार्डनिंग का बड़ा शौक है, इसलिए मुझे अपने घर के आगे एक प्यारा सा गार्डन चाहिए। अभी मैं फ्लैट में रहता हूँ तो मैं गार्डनिंग नहीं कर पाती, तो मुझे गार्डनिंग करनी है, अपने घर में सब्जियां उगानी है, इसलिए मेरे को अपना गार्डन वाला घर चाहिए। ठीक है, यू वांट अ बिगर हाउस, हाँ जिसका अपना प्राइवेट गार्डन है, हाँ क्योंकि तुमने अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। ठीक है, वाई में क्लियर हो गया ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है इसलिए तुम्हारे को एक अपना पर्सनल खुद का गार्डन वाला बंगला चाहिए। चलो भाई बात खत्म भाई। और अच्छी, जितना वाई स्ट्रॉन्ग कर दोगे उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स जो है वो उसने आपकी बातें ध्यान से सुनेगा। जितना वाई स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना वाई स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपकी पावर बढ़ेगी। ठीक है, ये आगे हम बढ़ते बढ़ते उसके एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। परंतु सबसे बड़ा जो खड्डा होता है जिसमें हर मनुष्य फंस जाता है, ये चाहिए तो है, हाँ इसलिए चाहिए, पर ये होगा कैसे। How many of you also get yourself stuck into it? How? So my suggestion to you is कि अगर आपको पता होता ना ये कैसे होगा तो आप आज तक कर लिए होते। अगर आपको पता होता ना कि ये इतने मेरे को ये आईफोन खरीदना है या ये हॉलिडे पे जाना है, इसके लिए पैसे कैसे कमाऊं, तो आप आज तक कमा चुके होते, स्पोर्ट्स में ना बैठे होते आकर। सॉरी, ऑब्वियसली आप कमा चुके होते ना। You are here because you don't know how to do it. Say yes if you agree. You are here because you really don't know how to do it. So if you are clear about it, so please don't how it. My request to you is don't how, just allow. Just allow मतलब जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे उस बस प्रोसीजर को फॉलो करते जाओ, और जो जो हम कहेंगे बस उसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, and you will see miracles happening in the list you will make today.
तो एवरीवन, आज आपने उस चीजों की लिस्ट बनानी है, उन कामों की लिस्ट बनानी है, उन रीजंस की लिस्ट बनानी है जिसके लिए आपको पैसा चाहिए। आपने ये नहीं लिखना कि मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं नहीं, 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, वो लिख लिया आपने व्हाट यू वांट, बट क्यों चाहिए पहले लिखो, मुझे लिस्ट बनाओ उसकी, कि मुझे हॉलीडे पे जाना है, मुझे घर खरीदना है, मुझे ये लेना है, वो लेना है, जो भी वगैरह वगैरह, और उसको मंथली डिवाइड कर दोगे तो इजी हो जाएगा। मतलब इस मंथ में आपको कितना चाहिए और क्यों चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर? असाइनमेंट क्लियर टू एवरीवन? इसको किए बिना कल क्लास में नहीं आना किसी ने भी, इसको किए बिना कल क्लास में नहीं आना, क्योंकि कल हम इसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन मतलब इसको थोड़ा सा और पावरफुल बनाएंगे इस असाइनमेंट को, और पूरी की पूरी हमारी आगे वाली जितने भी 15 दिन है वो इसी असाइनमेंट पे बेस्ड है कि आपको कितना चाहिए, नंबर 1, जो भी चाहिए, मतलब जो भी चाहिए, क्या चाहिए वो आपको लिखना है और क्यों चाहिए। तो पहले एक पेज बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे क्या चाहिए। मोबाइल फोन चाहिए, आईफोन सबसे अच्छा वाला मॉडल जो भी होता है। अभी आप बोलोगे कि हाँ भैया मैं 2 लाख रुपए का होता है, हाँ चलो ठीक है। लैपटॉप चाहिए 2 लाख रुपए वाला, जो भी होता है, मॉडल लिखो उसका। जैसे कि एप्पल का ये वाला लैपटॉप चाहिए, जो भी होगा। क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, इसमें मैं ये कर सकता हूँ, इसके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी है, इसकी रीच अच्छी है, इसके मॉड्यूल्स अच्छे हैं, उसमें मैं काम ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो पहले पेज पे क्या लिखना है? क्या चाहिए। दूसरे पेज पे लिखना है क्यों चाहिए, हर एक आइटम की डिटेलिंग के अंदर। दूसरा, चौथा, पांचवा, जितना मर्जी आगे तक बढ़ा दो पेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्यों को स्ट्रांगली लिखना है आज आपने। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं आई विल ओपन नाउ क्वेश्चन। इज देयर, डू यू हैव सपोर्ट राइट नाउ? So, thank you everyone for joining in for this session. And are there any questions? We can take questions if you'd like. You can raise your hand if there are any questions. आप क्वेश्चन पहले चैट बॉक्स में लिख लीजिए प्लीज, so that we can then unmute you. तो बाय नाउ असाइनमेंट इज क्लियर टू एवरीवन। आज आपने अपनी डिटेल लिस्ट बनानी है। पैसों की दुनिया में आपको क्या क्या पाना है, करना है। कुछ कोर्स करना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, तो जितने भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी आपकी लिस्ट है, डिटेल लिस्ट बनानी है। और हर आइटम के सामने आपने लिखना है व्हाई डू यू वांट इट, व्हाई डू यू वांट इट। और अगर आपको पता है उसके अमाउंट्स हैं, तो आज जब हम 12 से 2 में मिलेंगे एमएमएम के अंदर, तो एमएमएम में हम ये इसकी लिस्टिंग के ऊपर पूरा एनर्जी देना शुरू करेंगे। तो जो लोग खुद कर रहे हैं वो खुद से प्रॉपर डिटेल में करेंगे, और कल हम आगे काम करेंगे। आप क्वेश्चंस आंसर्स ले रहे हो? आई एम ओके, अगर कोई है तो मैं ले लेता हूँ, वरना वी कैन। आप देख लो, मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप ले लो। यस। क्वेश्चन, वी हैव टू राइट हाउ मच अर्निंग वी वांट फ्रॉम द योगा क्लास। आपको अर्निंग्स का करना क्या है, आपको वो लिखना है। कितनी अर्निंग्स हैं आपने वो लिखने के बाद उस अर्निंग्स को कैसे आप डिवाइड करते हो, कैसे स्पेंड करोगे, यू हैव टू राइट दैट। व्हाट ऑल एरिया आप उसको यूज करोगे उस अर्निंग्स को, जो भी मनी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यस यू कैन। आपने एक ड्रीम पहले लिखा अच्छे से, उसके बाद उसका वाई आंसर किया डिटेल में। एंड जितना ज़्यादा डिटेल करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर जाएगी। सो यस, एंड यू कैन टेक मल्टीपल ड्रीम्स, एंड बाय द एंड यू कैन देन उन सबके मनी अमाउंट को आप मंथली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैम ने बोला। कैन वी राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। आप अभी मनी एनर्जी में काम कर रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी बेच के जो भी अमाउंट पे बेचना है उस पैसे का क्या करना है, फोकस ऑन दैट। अगर आपकी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 1 CR की बिकती है, तो 1 CR का आप क्या करोगे? 1 CR को बैंक में रखोगे या फिर स्पेंड करोगे या नई प्रॉपर्टी खरीदोगे? तो व्हाट इज द रीजन व्हाई आर यू सेलिंग द प्रॉपर्टी, एंड उस पैसे का क्या करना है आपने वहां पे उसको, वो उस पर क्लैरिटी चाहिए कि अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसको बेच कर नई प्रॉपर्टी लेनी है तो क्यों लेनी है, व्हाट इज द रीजन, व्हाई डू यू वांट इट। एंड यस, आपको गिव एंड टेक दोनों लेफ्ट हैंड से करना, with more important is by being grateful.
श्रुति जी, आपका क्वेश्चन क्लियर आप कर दीजिए, थोड़ा और आपको क्लैरिटी चाहिए। आप डिटेल में लिख दीजिए, जिसको भी पे करना है कैसे करना है, यू कैन राइट दैट। रिसीविंग एंड टेकिंग बोथ आर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। वेरी गुड। आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर डन। जिन्होंने हैंड रेज किए हैं दे कैन राइट देयर क्वेश्चन ऑन द चैट अगर क्वेश्चन है आपका, बिकॉज फर्स्टली वी विल रीड द क्वेश्चन देन वी विल सी इफ वी कैन टेक इट ऑन वीडियो। तो बाकी डिटेल में इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करने के लिए वी विल बी मीटिंग। जो एमएमएम का जो मेन प्रोग्राम है वो दोपहर में 12 से 2 ही होगा। ये जो मॉर्निंग में हो रहा है इस समय, ये सिर्फ आपको थ्योरी समझाने के लिए कि इसके आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे फॉर्मूला को यूज करना है। तो आपका एमएमएम का टाइमिंग सेम ही रहेगा, 12 से 2 इन द आफ्टरनून, या फिर जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो 4 से 6 या मॉर्निंग 4 से 6 में रहेंगे। बट ये थ्योरी समझने के लिए आपको इस सेशन को कंटिन्यू में अपना रखना होगा 15 दिन, क्योंकि थ्योरी यहीं पे है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी। आई होप ऑल क्वेश्चंस आर टेकन। यस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एंड एवरीवन। जो हमने आज एक वैसी मैजिक क्यू पकड़ा है कि लेफ्ट हैंड से हम पैसे का लेन देन शुरू करेंगे। प्लीज, दिस इज जस्ट अ ट्रायल, प्लीज अंडरस्टैंड इट। ये मैंने अपने लिए ट्रायल लिया तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया कि हम जो भी हाथ से लेन देन करेंगे, क्योंकि हमने वो एक सेंटेंस सुना था कि बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ के साथ खेलते हुए ग्रेटफुल रहेंगे। तो इसको कोई टोटका बनाना या कोई ड्रामा बनाने की जरूरत नहीं है। 15 दिन तक ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कोई फर्क हो किसी एनर्जी के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी तो है ही। तो क्या पता कुछ शिवा शक्ति के अंदर कुछ डिफरेंस हो। तो लेट्स ट्राई इट, ओके? तो जस्ट ग्रेटफुली ट्राई इट। So thank you very much everyone for being in this wonderful journey with us. I'll be seeing you all at 12 to 2 in the MMM. Thank you very much. I hope all questions are sorted. Thank you, Beta ji, for wonderful support and really being in this session and learning together. So मेरे लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा learning रहा आज का session.